स्तुति हो संतो। Welcome to another exciting study in the book of Revelation. और प्रकाशित वाक्य की किताब के इस नए सत्र में आपका स्वागत है। This series is called Revealing Revelation. और ये सीरीज जो है इसे हम कहते हैं प्रकाशित वाक्य से पर्दा उठाना। We have studied about 5 churches till now. हमने अभी तक 5 कलीसियाओं के बारे में सीख चुके हैं। So we have finished chapter 1 and chapter 2 and we are almost at the end of chapter 3. और हमने जो है पहला अध्याय दूसरा अध्याय खत्म कर दिया है और अब हम तीसरे अध्याय पर हैं। We have finished Ephesus, we have finished Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis. हमने इफिसस, स्मिर्ना, परगमम, तायथारा और सार्दिस इन 5 कलीसियाओं को देख लिया है। Now we are at Philadelphia. अब हम फिलाडेल्फिया पे हैं। I hope you are enjoying the route of the circular journey. First we were at Patmos, then we came to Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis. और मैं आशा करता हूँ कि आप सब जो है इसका आनंद उठा रहे हैं कि कैसे हम उस कलीसिया के हिसाब से एक कलीसिया को देखते हुए जा रहे हैं। So let's continue the journey down all the way till Philadelphia. तो हम अब अपनी यात्रा को जारी रखेंगे और जाएंगे फिलाडेल्फिया के इस कलीसिया में। Today we are going to learn about the church which is known as the church of brotherly love. और आज की जो कलीसिया है जो जानी जाती है भाईचारे में प्रेम के बारे में। So this is recorded for us in Revelation chapter 3 verses 7 to 13. और ये हमारे लिए लिखा गया है प्रकाशित वाक्य उसके तीसरे अध्याय उसके 7 से 13 वचन So में। let us read that. आइए हम उसे पढ़ें। I trust that you all have finished reading it 5 times. और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसे 5 बार पढ़ लिया है। So verse 7. तो वचन 7 हम देखेंगे। And to the angel of the church in Philadelphia write, He that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth. प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय और 7वां वचन हम पढ़ेंगे। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुओं को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुओं को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि Verse 8, I know thy works, behold I have set before thee an open door, and no man can shut it, for thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. और मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। Verse 9, Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. देख मैं शैतान की उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। Verse 10, Behold, because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation that shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। Behold, verse 11, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। 12, Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out. And I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। Verse 13, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. 13 वचन, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। Beautiful letter. बहुत ही सुंदर एक खत। It is packed with richness and history.
और ये बहुत भरा पड़ा है, बहुत सारी भरपूरता और इतिहास में। You will be amazed to see how beautifully Christ speaks to this church. और आप बहुत ही चकित हो जाएंगे कि इतने सुंदर तरीके से यीशु जो है इस कलीसिया से बात करते हैं। What is the meaning of Philadelphia? Brotherly love. फिलाडेल्फिया इसका मतलब होता है भाइयों के बीच में प्रेम। So what is a church? तो एक कलीसिया क्या है? Church is actually ecclesia, which is called out. और कलीसिया का मतलब होता है यूनानी भाषा में एक्लीसिया, जिसका मतलब बाहर बुलाया जाना, Called out. बाहर बुलाया जाना। The church is not a place where perfect people meet. और कलीसिया एक ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर सिद्ध लोग मिलते हैं। We are imperfectly perfect. हम ऐसे लोग हैं जो सिद्ध नहीं है फिर भी सिद्ध हैं। With all our imperfections, we be perfect. हमारे सारे असिद्धता में से हम फिर भी सिद्ध हैं। Matthew 5:48, be ye perfect, therefore as your heavenly Father is perfect. जैसे मत्ती 5:48 में कहता है कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा पिता स्वर्ग में जो है सिद्ध है। If you come to church to find perfect Christians, you will be disappointed. अगर आप कलीसिया में इसलिए आते हैं कि आप सिद्ध मसीहों को ढूंढे तो आप निराश होंगे। If you come to church to find a perfect pastor, you will be disappointed. अगर आप कलीसिया में आते हैं कि आप एक सिद्ध पासबान को ढूंढे तो आप फिर बहुत निराश हो जाएंगे। The church is like a spiritual hospital where all broken, all imperfect people come and meet and get healed together and grow together. कलीसिया एक ऐसा आत्मिक अस्पताल है जहाँ पर लोग आते हैं और वहाँ पर टूटे हुए लोग और जो ऐसे लोग जिनमें सिद्धता नहीं है, जो अभी परफेक्ट नहीं हुए हैं, और वहाँ पर एक साथ मिलकर वो सिद्ध होते हैं, अपने घावों को वो ठीक करते हैं, चंगे होते हैं और बढ़ते हैं। When have you gone to a hospital and seen some other patient laugh at another patient because he is lame and this patient has some other issues with themselves? आपने कब ऐसा देखा कि आप एक अस्पताल में गए और वहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो हंस रहा है दूसरे व्यक्ति पर क्योंकि वो लंगड़ा है और उसके पैर ठीक नहीं है, और जबकि उसके खुद के अंदर कोई ना कोई बीमारी या तकलीफ है। So they all sympathize with each other. They all realize that all need a doctor. They are all very helpful, all very sympathetic towards each other's pain. तो अस्पताल में जो है वो हर एक दूसरे के जो है दुख को समझते हैं, उनके पीड़ा को समझते हैं और उन पर दया दिखाते हैं, उनसे प्यार से व्यवहार करते हैं, और उन सभी को डॉक्टर की ज़रूरत होती है। How many patients have you seen that know about the life of their doctor? और आप में से कितने अस्पताल में ऐसे मरीजों को आपने देखा है जो मरीज जो हैं वो उनके डॉक्टरों को व्यक्तिगत तरीके से जानते और पहचानते हैं। I have a question for you. Do you have a family doctor? और मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, क्या आपका कोई फैमिली डॉक्टर है? How educated is he? What education has he done? और क्या उनका पढ़ाई लिखाई उन्होंने कहाँ तक किया है? Which school did he graduate from? और किस स्कूल में वो गए? How many children he has? कितने बच्चे उनके पास हैं? What time he gets up in the morning? कितने बजे वो सुबह उठते हैं? What languages he speaks? कौन सा भाषाएं वो बोलते हैं? Do you ever look at all that? क्या आप कभी इन सारी बातों को देखते हैं? Yeah, do you look at what he can give you and how he can make you complete? या फिर आप ये देखते हैं कि क्या वो मुझे दे सकता है और वो मुझे पूरी तरीके से सिद्ध या संपूर्ण कैसे बना But सकता when you है? go to the church, you want to look at everything about the pastor. लेकिन जब आप कलीसिया में जाते हैं आप पास्टर को पूरी तरीके से देखना चाहते हैं। You want to look at what he's doing, where he did it, why he's doing it, what he does in his family life, everything you want to get into it and look and investigate. और आपको पूरा जांच पड़ताल करना है, ढूंढना है कि वो पास्टर कौन है, उसके घर में कौन कौन रहता है, वो क्या करता है, कैसे बात करता है, कैसे जीता है, सब कुछ आपको जांच पड़ताल करके घुस के अंदर देखना है। You want to pass comments and you want to condemn him for his lifestyle and say, no, I don't want to listen to this pastor preach because his life is like that. और आप जो है बड़े आसानी से न्याय कर देते हैं उस पास्टर का और कहते हैं कि ये पासवान को मुझे नहीं सुनना है, इसका जीवन खुद अच्छा नहीं है, ये अच्छा प्रचार नहीं कर सकता। Are you who put you as a judge over someone else's servant? और किसी दूसरे के दास पर आपको किसने स्वामी ठहराया? He stands or falls to his own God. वो गिरता या संभलता है वो अपने ही परमेश्वर के सामने। Jesus didn't say, look into the life of your pastors. यीशु ने कभी नहीं कहा कि अपने पासवानों के जीवन में झांक झांक कर देखो। And if they are not right, then don't follow them and don't hear them preach. अगर वो सही नहीं है तो उनके पीछे मत चलो, ऐसा नहीं कहा। I'll tell you one thing. मैं आपको एक बात बताऊंगा। If you hear international preachers,
अगर आप अंतर्राष्ट्रीय प्रचारकों को सुनते हैं or preachers on YouTube या जो YouTube पे प्रचारक हैं and you like them, और अगर आप उनको बहुत पसंद करते हैं you will change your view the moment you know their personal life. और आप अपना जो सोच विचार है उनके प्रति बिल्कुल बदल देंगे अगर आप उनको व्यक्तिगत तरीके से जानेंगे तो। Today you love their preachings आज उनके प्रचार आपको बहुत अच्छे लगते हैं because you don't know their personal life. क्योंकि आप उनके व्यक्तिगत जीवन को नहीं जानते। हालेलुया। Where is the brotherly love? भाईचारे का ये प्रेम कहाँ रहा? Have you ever seen if there is a wound in your body, the hand takes a knife and starts scratching the wound? क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आपके शरीर में कहीं घाव लगा है और आप चाकू लेकर उस घाव को और खोदते हैं और खोद कर उसको और बड़ा करते हैं? There is grudge growing in you for your own brethren. आपके खुद के भाई लोगों के लिए आपके अंदर एक कड़वाहट और एक गुस्सा, एक नफरत बढ़ते जा रहा You है। all are complaining and grumbling and murmuring and gossiping about each other. और हम सभी जो है एक दूसरे के बारे में कुड़कुड़ा रहे हैं, एक दूसरे के बारे में शिकायत कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में जो है चुगली कर रहे हैं। So we cannot stay with each other. We have so many problems with each other. We are looking at each other's imperfections and magnifying it. और इसीलिए हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। हम अब एक दूसरे की कमियों को जो है बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। But we are not looking at the beautiful things that these people have done in our lives. लेकिन हम ये नहीं देख रहे, ये भूल जा रहे हैं कि कितने सुंदर चीज़ों को इन लोगों ने हमारे जीवन में किया है। Are you understanding it? हालेलुया। क्या आप God समझ has- रहे हैं? God has not called us to look at people's imperfections and magnify them. God has called us to encourage one another. परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया है कि हम एक दूसरे की कमियों को देखकर उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाएं, लेकिन इसलिए बुलाया है ताकि हम एक दूसरे को उत्साहित करें। The Bible clearly says, lest you bite and devour each other. बाइबल साफ तरीके से कहता है कि ऐसा ना हो कि तुम एक दूसरे को खा चबा जाओ और पूरी तरीके से नाश कर डालो। Very sad. बहुत दुख की बात। Start learning to accept the person with their weaknesses, with their faults, with their frailties, with their personalities. और लोगों को जैसे वो हैं व्यक्तिगत तरीके से, उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो उनके अंदर कमी है, उन्हीं के साथ साथ आप उनको अपनाना शुरू कर दें। Don't think you are over perfect than anyone else. आप ये मत सोचिए कि आप किसी और से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सिद्ध हैं। You know the worst person to be with, the worst person that you would ever want to be with. You know who that is? क्या आपको पता है कि सबसे खराब इंसान, बदतर इंसान जिसके साथ आप कभी रहना नहीं चाहेंगे, आपको पता है वो कौन होगा? Yourself. आप खुद। You yourself will not be able to bear you. आप खुद अपने आप को सहन नहीं कर पाएंगे। So hats off to those people around you who are bearing you. तो उन सभी लोगों को मैं सलाम दूंगा जो आपको इस वक्त सह रहे हैं। So learn to accept everyone. तो हर एक को जो है स्वीकारें। I wouldn't want to stay with another Roger. मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मैं एक और रॉजर के साथ रहूँ। I am enough for me. मैं काफ़ी हूँ खुद ही एक। Are you understanding? क्या आपको समझ में आ रहा So है? don't try to make people think like you think, walk like you walk, behave like you behave. तो आप ऐसा ना सोचें कि लोग आपके जैसे व्यवहार करें, आप जैसे बात करते हैं वैसे बात करें, और जैसे आप चलते हैं वैसे। I don't think she's speaking right. मुझे नहीं लगता कि ये सही बोल रही I है। think she should behave more properly. मुझे लगता है कि इसको और अच्छे से व्यवहार करना I चाहिए। think they should do this and they should do that. मुझे लगता है कि इसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए। Who has set you a judge upon these people? और किसने आपको न्यायी ठहराया इन लोगों के ऊपर? Are you sure you are not making any mistakes in life? क्या आप बिल्कुल निश्चिंत है कि आप कोई भी गलती अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं? You know, when you judge someone, you know what happens? आपको पता है जब आप किसी का न्याय करते हैं क्या होता है? You acknowledge that that person is in front of you. आप ये एहसास करते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो आपके सामने है। I cannot judge someone who's behind me, right? मैं उनका न्याय नहीं कर सकता जो मेरे पीछे हैं, मतलब वो व्यक्ति आपके आगे है इसलिए आप उसका न्याय कर रहे So हैं। that means you are considering yourself lower than that person. तो इसका मतलब कि आप उस व्यक्ति से अपने आप को नीचे देख रहे हैं इसीलिए आप उसका न्याय कर रहे But हैं। when you encourage and build up,
लेकिन जब आप किसी को उत्साहित करते हैं और उनको ऊपर उठाते हैं, you are above that person because you are helping that person to come हालेलुया, up. प्रेज द लॉर्ड, तो आप इसलिए उनको उत्साहित कर रहे हैं और इसलिए उनको ऊंचा उठा रहे हैं क्योंकि वो आपके पीछे हैं या आपसे नीचे हैं और आप उनको अपने स्तर या उससे वो ऊपर स्तर पे ला रहे हैं। You decide you want to be back or you want to be front. आप इस बात का निर्णय लें कि आपको उस व्यक्ति के पीछे रहना है या उस व्यक्ति के आगे रहना When you है। gossip about a person, Hallelujah. you are behind that person. That's why you can see that person doing things and you can gossip. और जब आप किसी की चुगली करते हैं, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो है वो आपके आगे है और आप उसको देख सकते हैं, इसीलिए आप उसकी चुगली करते So हैं। that means you are the lower, you are piche, you are back. इसका मतलब कि आप उस व्यक्ति से नीचे स्तर पर हैं। But when you pray for the person, लेकिन जब एक व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करते हैं you are beyond that person. You are pulling that person towards God. तो towards इसका the मतलब destiny. कि आप जो है उस व्यक्ति को परमेश्वर के सामने लेकर आ रहे हैं, आप जहाँ पर हैं वहाँ पर ऊपर उस व्यक्ति को लेकर आ रहे हैं। Complaining, grumbling, and gossiping about a man of God or about a child of God, start praying for them. Because if you pray for them, you cannot gossip, you cannot complain or murmur about them. कुड़कुड़ाना, शिकायत करना और जो है शिकायत करना और किसी की चुगली करना, अगर आप ये सब परमेश्वर के जन और परमेश्वर के बेटे के बारे में कर रहे हैं, परमेश्वर के पुत्रों के बारे में, तो आप ये बंद कर दें और इसके बजाय आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें। और जिसके लिए भी आप प्रार्थना करते हैं, आप कभी उनके लिए पंचायत या चुगली या शिकायत या कुड़कुड़ा नहीं सकते। So when we come together, we are all imperfect. तो जब भी हम एक साथ आते हैं, हम सब में कुछ ना कुछ जो है, हम सिद्ध नहीं है सब। Some are confused, some are irritated, some are angry. It's okay. कुछ जो है गड़बड़ी में हैं, कुछ जो है चिड़चिड़े हैं और कुछ जो है गुस्सा करते हैं। Some ये pay ठीक है। attention, some don't pay attention. It's okay. कुछ जो है ध्यान देते हैं, कुछ नहीं देते, ठीक है ये। We all come together because we have one thing in common. The magnet attracts the iron. Jesus Christ attracts us together. और हम सब में कुछ ना कुछ असिद्धता है और ये जो लोहा होता है वो सारे चुंबक को अपने और खींच के चिपका लेता है। जो चुंबक होता है वो सारे लोहे को चिपका लेता है अपनी ओर। वैसे ही यीशु मसीह हैं जो हमारे चुंबक है और हम सब लोहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ अशुद्धता है और हम उस लोहे से चिपक जाते हैं। He is the reason I love you. He is the reason we come together और and वही love and encourage each other. और वही एक कारण है जो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे को संभालते हैं, एक दूसरे को उत्साहित करते हैं। There is no other reason you can find in anyone to love them कोई भी और कारण आप पा ही नहीं सकते कि हम एक दूसरे से प्यार करें, except that they belong to Jesus Christ. सिर्फ इसीलिए हम एक दूसरे से प्यार करते हैं क्योंकि हम सब जो हैं यीशु मसीह के हैं। If you see Jesus in them, believe me, you cannot condemn them, you cannot gossip, you Hallelujah. cannot pull them down. अगर आप सामने वाले के अंदर यीशु मसीह को देखते हैं तो आप कभी उन पर दोष नहीं लगा सकते, उनको नीचे नहीं गिरा सकते। But if you still complain, gossip and grumble about them, I guess in heaven when you see Jesus, you do that about him as well. तो अगर आप अभी भी उनको इनमें यीशु देखकर भी आप चुगली करते हैं, आप जो है कुड़कुड़ाते हैं, आप शिकायत करते हैं, तो इसका मतलब है जब आप स्वर्ग में यीशु को भी देखेंगे तो आप उनके लिए भी यही चीजें करेंगे। Hey, I thought Jesus had blue eyes. I thought Jesus has long hair. I thought Jesus has brown hair. Huh? अरे मैंने तो सोचा यीशु की आंखें नीली हैं, उनके बाल जो है सुनहरे हैं, उनके बाल बहुत सुंदर हैं। Huh? Dug for a mouse and got a what? Mountain. अच्छा, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। Dug for a mountain, got a mouse. Okay, खोदा that's पहाड़ और निकला चूहा। So I expected Jesus to be wow and awesome and all that, but he has blue eyes. He has brown eyes. I wanted blue eyes. और आप जो है स्वर्ग में भी जाकर ऐसे ही शिकायत करेंगे कि अरे मैंने तो सोचा यीशु की आंखें बहुत खूबसूरत होंगी, जो है नीली होंगी, लेकिन ये तो भूरी रंग की हैं। David, दाऊद, Paul. पौलुस। Stop grumbling. You have to practice to stop grumbling here only about people, because up there you're going to find a lot of funny people. तो आपको जो है यहीं पे जो है शिकायत करना बंद करना होगा, क्योंकि अगर आप ऊपर जाएंगे तो आप ऊपर भी आपकी ये आदत नहीं जाने वाली है। Jesus, heaven is too cold. Go to hell. कहेंगे अरे स्वर्ग तो बहुत ज्यादा ठंडा है, तो एक काम करो नर्क में जाकर देखो कितनी गर्मी है। अरे पानी too clear water, too much water. Where is fish, pomfret and all? Where is pomfret? People will have something to complain or grumble wherever they go. If that's
That's not talking about the place or the person, that's talking about you and your attitude. यस। और जो लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, हमेशा कुड़कुड़ाते हैं, उनको किसी भी स्थान पे आप रख ले, वो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ढूंढ निकालेंगे शिकायत करने के लिए या कुड़कुड़ाने के लिए। तो जो समस्या है वो उस स्थान में या उस परिस्थिति में नहीं है, समस्या उस व्यक्ति में है। So the church of Philadelphia teaches us brotherly love. तो ये फिलाडेल्फिया की जो कलीसिया है ये हमें सिखाती है भाइयों में प्रेम रखना। Now understand one thing. अब एक बात को आप समझे, Brotherly love is conditional. भाइयों में जो प्रेम है वो तो जो है उसमें कंडीशंस है, उसमें कुछ स्वार्थ है। Number one condition, और जो सबसे पहले शर्त है, the number one condition is that Jesus Christ has commanded us to love one another. सबसे पहला शर्त ये है हमें अपने भाइयों से प्रेम रखने का कि यीशु ने हमें ये आज्ञा दी है। So even if I don't feel like, I don't care, I will still love you. तो इसका मतलब अगर मुझे ये मेरे अंदर ये भावना नहीं आती है फिर भी मैं उनसे प्रेम करूंगा। I will still take care of you, I will still pray for you. मैं फिर भी आपका ख्याल रखूंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Number two condition, दूसरी शर्त जो है, because you are in Christ Jesus, I will love you. क्योंकि आप यीशु मसीह में हैं, मैं आपसे प्रेम रखूंगा। Because I can see Jesus. क्योंकि मैं आपके अंदर यीशु को देख सकता So हूँ। not only what Jesus said, तो सिर्फ इतना ही नहीं कि क्या यीशु ने कहा, but because to who you belong. लेकिन इसलिए भी कि आप किसके हैं। That is the condition of brotherly love. ये है शर्तें भाइयों के बीच में प्रेम रखने का। Anything that you cannot say in front of a person, do not say it behind their back. कोई भी बात जो है आप सामने वाले व्यक्ति के मुंह पर अगर नहीं कह पा रहे तो आप उनके पीछे भी नहीं कह सकते। The people who gossip to you will gossip about you. जो लोग आपकी बुराई या आपकी चुगली कर रहे हैं वो जो लोग आपके साथ किसी की बुराई या किसी की चुगली कर रहे हैं वो कल जरूर आपकी चुगली, आपकी बुराई किसी और से करेंगे। So would you like it? तो क्या आपको तब पसंद आएगा? Stop them then and there. तुरंत उसी समय उन्हें रोक दें, Just pray for that person. उनके लिए प्रार्थना करें। You don't like someone? अगर आपको कोई नहीं पसंद है Pray for them. उनके लिए प्रार्थना करें, Encourage them. उनको उत्साहित करें, Tell them, I'm praying for you. कहें मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा Then हूँ। you know, okay, this person doesn't like me. तो आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता। There are only 2 good churches in the 7 churches. इन 7 कलीसियाओं में से केवल 2 कलीसियाएं जो बहुत अच्छी हैं, Beautiful, beautiful. बहुत ही सुंदर, Smyrna and Philadelphia. स्मिर्ना और फिलाडेल्फिया की कलीसिया। Philadelphia, Smyrna was the persecuted church, Philadelphia the brotherly love church. स्मिर्ना जो कलीसिया था वो परमेश्वर के लिए दुख सह रहा था, सताव सह रहा था, और फिलाडेल्फिया जो अपने भाइयों से प्रेम रखता था। So Smyrna is a pure example of, these 2 churches are a pure example of the 2 commands that Jesus said was very important. Number 1, love the Lord your God. Number 2, love your neighbor as yourself. और ये 2 कलीसियाएं उस सबसे उत्तम उदाहरण है उस आज्ञा के लिए जो यीशु मसीह ने हमें दिया कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, अपने परमेश्वर से प्रेम रखो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम So करो। Smyrna was an example of loving God with all their heart, that they were ready to die for Him. तो स्मिर्ना जो कलीसिया है वो हमारे लिए ये उदाहरण रखता है कि वो परमेश्वर से इतना प्रेम करते थे कि अपनी जान की भी परवाह उन्होंने नहीं की। And Philadelphia, a perfect example of loving the brother and loving the neighbor. They lived for one another. और फिलाडेल्फिया एक ऐसी कलीसिया जो अपने पड़ोसी से इतना ज्यादा प्रेम रखते थे कि अपने भाइयों के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। Hey, in the time of trouble, let me tell you, church, और दुख के समय में कलीसिया में आपको कुछ कहना चाहता हूँ, you can count on us. आप हम पर पूरा भरोसा रख सकते हैं, We will be there for you. हम आपके लिए जरूर वहाँ होंगे। This is the mandate of Christianity. और यही है मसीहत का जो है, यही मसीहत में होना चाहिए। Now let's see the description that Christ gives of Himself in Revelation chapter 3 verse 7. और प्रकाशित वाक्य 3 के 7 में यीशु मसीह जो अपने बारे में यहाँ व्याख्या देते हैं हम उसे देखेंगे। The shocking thing about this description is it's not taken from Revelation chapter 1. और चकित करने वाली बात ये है कि यीशु मसीह जो अपने बारे में यहाँ पर बता रहे हैं वो प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में नहीं है। So the first 5 churches which we studied, most of them were taken and all of them were taken from Revelation chapter 1. There was some similarity. But shockingly, to the church of Philadelphia, he describes himself with new terms. और जो पिछले 5 कलीसियाओं में हमने देखा जो यीशु मसीह के बारे में वहाँ पर व्याख्या की या यीशु के बारे में बताया गया,
वो प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में जो यीशु के बारे में बताया गया उससे बहुत कुछ पूरा मिलता जुलता है, लेकिन ये पहला कलीसिया है फिलाडेल्फिया जहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को अलग तरीके से बताते हैं। So he says here in Revelation chapter 3 verse 7, these things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth. 4 characteristics of Christ. और यहाँ पर 7वें वचन में यीशु कहता है, और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है। यहाँ पर 4 तरीके का व्याख्या यीशु मसीह अपने बारे में बताते हैं। Now the thing that should shock you the moment you read this, I hope some of you might have realized it, but it is when you study it deeper. The thing that should shock you is, why does Jesus introduce himself so dangerously? और अगर आप ध्यान से इसे पढ़े, इसमें अध्ययन करें, तो सबसे चकित करने वाली बात यहाँ पर यह है कि यीशु मसीह अपने आप को इतने डरावने तरीके से अपने आप को क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं इस कलीसिया को। If you are telling that the church of Philadelphia is a good church, why are you coming as a holy God? और अगर आप कह रहे हैं कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया जो है बहुत अच्छी है, तो परमेश्वर यीशु मसीह जो है अपने आप को इतना पवित्र और सत्य अपने आप को क्यों दिखा रहे हैं। Isaiah 41:20 and several references in Isaiah say that I am God, the Holy One of Israel. यशाया उसके 41वें अध्याय के 20वें वचन में और ऐसे कई सारे वचन हैं जहाँ पर ये परमेश्वर अपने आप को दर्शाते हैं कि मैं पवित्र परमेश्वर हूँ। And in Mark 1:24, the demons also say, we know that you are the Holy One. और मरकुस 1:24 में भी कहता है, दुष्ट आत्माएं कहती हैं यीशु को कि हम जानते हैं कि तू जो है परमेश्वर का पवित्र जन है। John 6:69, Peter and the disciples say, we know that you are the Holy One. और यूहन्ना 6:69 में कहते हैं सारे शिष्य यीशु से कि हम जानते हैं कि तू पवित्र जन है। See, you cannot understand the book of Revelation if you don't know the Old Testament. आप जो है प्रकाशित वाक्य की किताब को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप पुराने नियम को नहीं जानते। It is very Hebrewic, it is very Old Testament, it is 400 references, even though it's not literal references, but 400 allusions to the Old Testament. और प्रकाशित वाक्य की किताब में बहुत सारी बातें पुराने नियम से ली गई हैं, यहाँ तक कि 400 वचन को आप मेल जोल कर सकते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब में पा सकते हैं। Amen. And you know approximately how many verses are there in the book of Revelation? और आपको पता है प्रकाशित वाक्य की किताब में कितने वचन हैं? Anybody remembers? 404. 404। Imagine how much of Revelation is Old Testament. तो आप सोच के देखें कि कितना ज़्यादा पुराना नियम प्रकाशित वाक्य में है। So understand one thing over here, when Jesus is saying, I am the holy, I am holy, he is saying in literal, I am God. तो यहाँ पर जब यीशु मसीह अपने आप को दर्शा रहे हैं कि मैं पवित्र हूँ, तो वो सीधे तरीके से ये कहना चाहते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ। I am God of Israel of the Old Testament, that holy God who cannot tolerate sin. तो ये यहाँ पर यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि मैं वही इज़राइल का पवित्र परमेश्वर हूँ जो कि पाप को बिल्कुल मैं झेल नहीं सकता। Now you should sit back and wonder and realize, my goodness, when the church of Philadelphia might have read this letter, they might have been shocked. Why is Jesus introducing himself as God? Introduce yourself as a good shepherd or something cute, something cute. Why something so dangerous? तो यहाँ पर फिलाडेल्फिया को जब ये पत्री मिली होगी तो उनको पढ़कर बहुत ज़्यादा वो चकित हुए होंगे कि यहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को इतने खतरनाक तरीके से क्यों दिखा रहे हैं। उनको तो कहना चाहिए था कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ या ऐसी कोई अच्छी बातें। Even to the church of Thyatira, which was completely in sin, he introduced himself as the Son of God. Not even God. But here, where there is no sin, you are introducing yourself as holy God. और यहाँ तक कि थियोथीरा की कलीसिया में जहाँ पे बहुत पाप हो रहे थे और बहुत कुछ गलत चीज़ें हो रही थी, वहाँ भी यीशु मसीह को अपने आप को यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के समान दर्शा रहे हैं। और इस कलीसिया में यीशु अपने आप को सीधे कह रहे हैं कि वो परमेश्वर हैं। Okay, so there is no sin, but still you are introducing yourself as God. Now let's see the next description. तो यहाँ पर कोई पाप नहीं है, फिर भी यीशु मसीह अपने आप को पवित्र करके बुला रहे हैं। I am confused.
मैं थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज हूँ। Jesus, why did you say you're God? Why holy when there's no sin? यीशु अपने अपने आप को यहाँ पर क्यों दर्शाया कि आप पवित्र हैं, आप परमेश्वर हैं, जब यहाँ पर कोई पाप नहीं है। Maybe he improves with the second description. शायद हो सकता है कि दूसरा जो व्याख्या अपना उन्होंने दिया वो कुछ अलग हो। He that is true. वहाँ पर वो कहते हैं कि वो जो सत्य है। Now this is another shock. ये अब दूसरा चकित करने वाला शब्द है। No lies. कोई झूठ नहीं। Arey, we are the true church, we are the true believers, we are small little congregation, we are sitting here and you are saying true. और हम यहाँ पर छोटे से सभा में एक दूसरे से बहुत प्रेम रखने वाले लोग हैं और आप कह रहे हैं कि सत्य। You see this reference in Revelation 19:2 and 11. He that is holy and true. Okay. Then you see in John 14:6 also Jesus says, I am the way, the truth and the life. And 1 John 5:20 also. This is the truth. और यहाँ पर आप सारे वचन को भी देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय और 2 से 11 वचन में, और यूहन्ना 14:6 में, और 1 यूहन्ना 5:20 में भी यीशु कहते हैं अपने आप को कि वो सत्य है। So he is coming. Is there any lie in me that he should come as the truth? तो क्या उनमें कोई झूठ बातें थी जिससे यीशु अपने आप को प्रकट कर रहे कि वो सत्य है? In Greek, the word truth, you can transliterate it to real. और अगर यूनानी भाषा में इस ट्रूथ या इस सत्य शब्द को हम अगर अनुवाद करते हैं तो वहाँ पर वो कहता है कि असल, असली में। When he says I'm the true wine, he's saying I'm the real wine. जब वो कहते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूँ, तो इसका मतलब वो कहना चाहते हैं कि मैं असली दाखलता हूँ। When he's saying I'm the true, when he's saying that I am the true bread that comes down from heaven, he's saying that manna which your fathers ate and died, that's not the real manna. I am the true manna. I am the real manna. तो यीशु जब कह रहे हैं कि वो मन्ना जो तुम्हारे बाप दादाओं ने खाया और वो रेगिस्तान में मर गए, मैं असली मन्ना हूँ, मैं असली वो मन्ना हूँ जो स्वर्ग से आया हूँ। So let's park these two attributes which literally show Jesus as God. Let's park them aside. तो ये दो जो हमने अभी व्याख्या यीशु मसीह के बारे में देखा, पवित्र और सत्य, इसको थोड़ी टाइम के लिए हम अलग करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। I will come to that. मैं उस पर आऊँगा। As to why he said this to a beautiful church. तो क्यों यीशु ने अपने आप को ऐसे दर्शाया एक इतनी सुंदर कलीसिया में? And believe me, और when you realize that, you will love it. और मुझ पर विश्वास करें, जब आपको ये एहसास हो जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आप इसे बहुत बेहद प्यार करेंगे। How can you just read Revelation without being touched by the beauty of it? और आप प्रकाशित वाक्य को कैसे ऐसे ही पढ़ सकते हैं बिना ये जाने कि कितना सुंदर है ये? One word has so much juice in it. और एक एक शब्द में इतना मतलब है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। Next we see the next description, he that has the key of David. और आगे वो कहता है कि जिसके पास दाऊद की कुंजियां हैं। So we know that in Isaiah 22:22, we read it last time also when we were studying Revelation chapter 1, that the key of David is something that was prophesied in the Old Testament. और यशाया 22 के 22वें वचन में हमने पिछली बार देखा था कि दाऊद की जो कुंजी है, It was prophesied in the Old Testament. ये पुराने नियम में जो है इसकी भविष्यवाणी की गई थी। Luke 1:32, I will give you the throne. He will have the throne of his father David. लूका 1:32 में कहता है कि उसके पास दाऊद का सिंहासन होगा। Revelation 1:18 says he has other two keys also, the keys of death and the keys of Hades or hell. प्रकाशित वाक्य 1:18 में वो ये भी कहता है कि उसके पास मृत्यु और नरक की कुंजियां हैं। Excellent. I'll come to this as well. मैं इस पे भी आऊंगा बाद में। Next one, he says, I open, no man shuts. I shut, no man opens. और आगे वो कहता है कि मैं जिस द्वार को खोलता हूँ उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसको मैं बंद करता हूँ उसे कोई खोल नहीं सकता। You might be wondering what does this mean? और आप सोचेंगे कि इसका मतलब क्या है? Excellent. Good question. Let's read these verses. Job. आइए हम इन वचनों को पढ़ें। Job 11:10. अय्यूब 11:10। Thank you, Father. It says, if he cut off and shut up or gather together, then who can hinder him? जब ईश्वर बीच से गुजरकर बंद कर दे और अदालत कचहरी में बुलाए, तो कौन उसको रोक सकता है? Who can shut it if he opens and who can open if he shuts? Okay. Now Job 12:14. Behold, he breaketh down and it cannot be built again. He shut it up a man and there can be no opening. और अय्यूब 12:14 में कहता है, देखो जिसको वह ढा दे वह फिर बनाया नहीं जाता, जिस मनुष्य को वह बंद करे वह फिर खोला नहीं जाता। Matthew 16:19.
And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, that whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. मत्ती 16 उसका 19 वचन कहता है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। Beautiful. बहुत सुंदर। He has the authority उसके पास अधिकार है to open or to shut. कि वो बंद करे या उसे खोले। Don't bang your head against a shut door. और एक बंद दरवाजे पर अपने सर को आप ना पटके। And when a door is open, और जब द्वार खुला है you don't have to bang तो आपको उसको खटखटाने की जरूरत नहीं है, because it's open. क्योंकि वो खुला है। Will you ring the bell of your house if your door is open? क्या अगर आपका घर का दरवाज़ा खुला है तो आप घर की घंटी जो है वो बजाएंगे? नहीं। So understand one thing. तो एक बात समझे, You don't have to struggle if God has already kept an open door for you. तो आपको जो है बिल्कुल भी मुश्किल का सामना करने की जरूरत नहीं है, कोशिश नहीं करने की जरूरत है अगर परमेश्वर ने आपके लिए द्वार खोला है। Amen? हालेलुया। Yes man, no man? आमीन। Amen. What is the key of David? और दाऊद की कुंजी क्या है? This gets interesting. ये बहुत ही दिलचस्प है। Obviously we read Isaiah 22:22, but let's read the context. और हम यशाया 22 का 22 वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन उसको संदर्भ में देखें कि ये क्या कहता है। Before that, I'll explain to you a story. उसके पहले मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। Isaiah was a prophet in the time of King Hezekiah. और यशाया जो भविष्यद्वक्ता था, ये उस समय था जब राजा हिजकिय्याह जो है राज्य कर रहे थे। So Hezekiah king was a southern king. हिजकिय्याह जो राजा थे वो दक्षिण की ओर जो है राज्य कर रहे थे। He was a good king as well. और वो भी एक अच्छे राजा थे। He was messed up sometimes, but he was good because he had Isaiah as his companion. थोड़ा बहुत उन्होंने गलती की, लेकिन वो अच्छे राजा बन रहे थे क्योंकि यशाया उनके साथ संगी था। During his time, there was the treasurer or finance minister of that time called as Shebna. और उस समय में राजा हिजकिय्याह के राज्य में एक व्यक्ति था जो खजांची था या जो खजाने पर ध्यान रखता था, उसका नाम था शेबना। Khazindar, yeah. खजिंदार। Yeah. Okay, Shebna was a very attitude guy because he had the keys to the entire treasury of the king. Okay, so he had a lot of attitude and a lot of arrogance. It got to his head. और शेबना ये जो व्यक्ति था ये बहुत ही ज़्यादा घमंडी और बहुत ज़्यादा इसके अंदर एटीट्यूड या बहुत ज़्यादा इसके अंदर घमंड था, क्योंकि पूरा जो राजा का खजाना था उसकी चाबी इसी के पास थी। He got so much attitude that he started building his own sepulcher or his own grave in the tomb, in a rock. In a rock he started grafting and saying, I will have the most luxurious tomb when I die. और इतना इसके अंदर घमंड आया कि इसने अपना जो कब्र है वो उसको इतने सुंदर तरीके से उसने पत्थरों को खोद के उसमें बनवाया कि जब ये मरे तो वो बहुत ही सुंदर कब्र में वो मरे। But God had different plans. लेकिन परमेश्वर के पास अलग योजना थी। God says something very shocking to Shebna at that time, who had long-term plans that he would remain as the treasurer. परमेश्वर यहाँ पर कुछ बहुत ही चकित करने वाली बात शेबना से कह देते हैं, जो कि सोचता है कि वो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक अच्छा जीवन जिएगा। Let's read Isaiah 22, verse 15. Thus saith the Lord of hosts, Go, get thee unto this treasurer, even unto Shebna, which is over the house, and say. सेनाओं का प्रभु यहोवा यूँ कहता है, शेबना नाम उस भंडारी के पास जो राजघराने के काम पर नियुक्त है, जाकर कह, यहाँ तू क्या करता है। 16. What hast thou here, and whom hast thou here, that thou hast hewed thee out a sepulchre, a grave here, as he that hewed him out of a sepulchre on high, and that graved an habitation for himself in a rock. वचन 16 कहता है, और यहाँ तेरा कौन है कि तूने अपनी कब्र यहाँ खुदवाई है, तू अपनी कब्र ऊंचे स्थान में खुदवाता और अपने रहने का स्थान चट्टान में खुदवाता है। 17. Behold, the Lord will carry thee away with a mighty captivity and will surely cover thee. देख, यहोवा तुझको बड़ी शक्ति से पकड़कर बहुत दूर फेंक देगा। 18. He will surely violently turn and toss thee like a ball into a large country. There shalt thou die, and there the chariots of thy glory shall be the shame of thy Lord's house. वह तुझे मरोड़ कर गेंद की नाहीं लंबे चौड़े देश में फेंक देगा,
हे अपने स्वामी के घराने को लज्जित करने वाले, वहां तू मरेगा और तेरे वैभव के रथ वहीं रह जाएंगे। God has a sense of humor, right? और परमेश्वर यहाँ पर कुछ मजाक की I बात will कर रहे make you a ball and I will throw you far away. हैं। मैं तुम्हें एक गेंद बनाकर तुम्हें दूर फेंकूंगा। So he also used to play that ball, you know, where you throw the ball and those 9 pins are standing there and you have to make them fall. That game started from then. Huh? Okay, verse 19. And I will drive thee from thy station, Nala Sopara station, and from thy state shall he pull thee down. मैं तुझको तेरे स्थान पर से ढकेल दूंगा और तू अपनी पद से उतार दिया जाएगा। Now shocking verse 20. अब चकित करने वाला है वचन 20। Buddy, you are building your grave over here, thinking you're going to die over here lavishly in this grave. I have news for you. You're going to die in an unknown country. You're going to die in the enemy's territory. I'm going to throw you there. तो यहाँ पर शिबना जो है सोच रहा है कि उसकी जो मौत होगी वो उसकी जो लाश है वो इस कब्र में गाड़ी जाएगी, जो बहुत ही सुंदर कब्र वो बना रहा है। लेकिन परमेश्वर की अलग योजना है। वो कह रहा है कि तू जो है दूसरे देश में जाकर मरेगा अपने दुश्मनों के बीच। But I'll call a humble fellow. Verse 20. It shall come to pass in that day that I will call my servant Eliakim, the son of Hilkiah. उस समय मैं हिल्किया के पुत्र अपने दास एलियाकीम को बुलाकर उसे तेरा अंगरखा पहनाऊंगा। I will throw you out of the position of a treasurer because you have so much attitude, and I will bring this humble servant of mine called Eliakim. और तुझे शेबना जिसे अंदर इतना घमंड है मैं निकाल कर उस पद से एलियाकीम मेरा दास जो बहुत ही नम्र है उसे रख दूंगा। 21. And I will clothe him with thy robe and strengthen him with thy girdle, and I will commit thy government into his hand, and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. उसे तेरा अंगरखा पहनाऊंगा और उसकी कमर में तेरी पेटी कसकर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा और वह यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा। And now verse 22. And the key of the house of David will I lay upon his shoulder, so he shall open and none shall shut, and he shall shut and none shall open. और फिर 22 वचन कहता है, और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। He will have access to the treasuries of the kingdom. Why? Because you were using the treasuries for your own purposes. He will use it to be a father to the nation. और यहाँ पर परमेश्वर शिबना से कह रहा है क्योंकि तूने जो है खजांची बनकर ये सारे खजाने का इस्तेमाल अपने खुद के स्वार्थ के लिए किया, लेकिन मैं इस एलियाकीम को रख रहा हूँ जो कि पूरे राष्ट्र को जो है उसका पिता ठहरेगा और उन लोगों की मदद करेगा। वो Are you a dam of the blessings of God, or are you a river? क्या आप परमेश्वर की आशीषों के लिए एक बांध बन गए कि उसे रोककर अपने तक रख रहे हैं या फिर एक नदी? The Jews were called to be a blessing to the Gentiles. They started damming up the blessings of Abraham for themselves. और यहूदी लोग जो है वो राष्ट्रों के लिए आशीष कहलाए जाते थे, लेकिन वो अपने आप को जो है बांध बना रहे थे कि अब्राहम की आशीषों को वो खुद तक रोक कर रखे। So when the key of the house of David went into the hand of the Messiah, Jesus Christ, he became a blessing not only for the Jews but for the Gentiles. तो जो दाऊद राजा की कुंजी जो है जब यीशु को मिला तो वो सिर्फ जो है अपने यहूदियों के लिए ही वो आशीष का कारण नहीं बने, लेकिन पूरे राष्ट्रों के लिए, पूरे संसार के लिए वो आशीष का कारण हुए। So the key of David means Jesus now has access to the treasuries of the kingdom of heaven, which he has blessed you with every spiritual blessing in Christ Jesus. हालेलुया। तो दाऊद का कुंजी यीशु के पास होने का मतलब है कि स्वर्ग की सारी जो खजाने स्वर्ग के हैं, जो धन दौलत स्वर्ग में है, वो सब कुछ यीशु के कब्जे में है और वो सब कुछ यीशु ने आपको दिया है मसीह में। Therefore he says, the door which I open no man can shut, and the door which I shut no man can open, and he says I am the door. आमीन। इसीलिए वो कहता है कि जो द्वार मैं खोलता हूँ उसे कोई बंद नहीं कर सकता और जिसे मैं बंद करता हूँ उसे कोई खोल नहीं सकता, और यीशु कहते हैं वो द्वार मैं हूँ। So you cannot sneak into the kingdom, you have to come through me. तो तुम जो है राज्य में प्रवेश कभी नहीं कर सकते, और अगर करना है तो सिर्फ मेरे द्वारा। Because everybody who tries to come from back, they are thief and robbers. क्योंकि जो कुछ भी पीछे से या कहीं और से कूद कर अंदर आने की कोशिश करते हैं वो चोर हैं।
I hope you all have understood the meaning of the key of David. और मैं आशा करता हूँ कि आपको दाऊद के कुंजी इसका मतलब समझ में आ गया। See the door open and shut very beautifully. Paul always says, pray for me that there will be a door open for me to preach the gospel. और दाऊद हमेशा कहता है, पौलुस हमेशा कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। पौलुस हमेशा कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं जो है मेरे लिए एक द्वार खुले कि मैं जाकर सुसमाचार प्रचार कर पाऊँ। So let's see Colossians 4:3-5. You can read this other scriptures also, but Colossians 4:3-5. Let's understand what he actually meant by door opened and shut. तो कुलुस्सियों 4 उसका 3 और 5 हम पढ़ेंगे। आप बाकी के वचन भी देख सकते हैं, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे। This is in the Living Bible. ये है लिविंग बाइबल में। Don't forget to pray for us too, that God will give us many chances to preach the good news of Christ. हमारे लिए प्रार्थना करना मत भूलो कि परमेश्वर हमें बहुत सारे मौके दे कि हम जो है सुसमाचार का प्रचार कर पाएं। So brother, till God doesn't open the door, now we cannot preach gospel. तो भाई, जब तक परमेश्वर हमारे लिए मार्ग या द्वार नहीं खुलता, हम कैसे सुसमाचार प्रचार करें? So we have to wait for God to open the door to preach a gospel. तो हमें जो है परमेश्वर पर इंतजार करना है, बाट जोना है कि वो कब हमारे लिए द्वार खोले। I guess Jesus says, if I open the door, no man can shut it, right? और मुझे पता है कि यीशु तो ये भी कहते हैं कि अगर मैं एक द्वार को जिसे खोलता हूँ उसे कोई बंद नहीं कर What did सकता। Jesus say? All authority is given unto me। यीशु ने कहा कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Therefore go into all the world। When you get a visa for all the world, where can you go? All the world. तो जब यीशु ने आपको कह दिया कि सारे जगत में जाकर प्रचार करो, अगर सारे जगत का वीजा आपको मिल गया है तो इसका मतलब आप सब जगह जा सकते हैं। I have access to the gospel to all the world. I gave you access to all the world. Where can you go to preach the gospel? Which door is shut? There is no door shut for you. Amen। तो मैंने तुम्हें सारे जगत में वीजा दे दिया है कि तुम जाकर सुसमाचार प्रचार करो, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम किसी भी देश में जाकर प्रचार कर सकते हो। So is that what Paul is saying? क्या ये है जो पौलुस कह रहे हैं? See verse 5. आगे वचन 5 में देखते हैं। Make the most of your chances to tell others the good news. Be wise in all your contacts with them. तो तुम जो है अपने मौकों को अच्छे तरीके से उसका उपयोग करके लोगों को सुसमाचार सुनाओ और बुद्धिमान रहो जो जो तुम्हारे कांटेक्ट में या संपर्क में है उनको बताने के लिए। Very beautiful. He is saying in all, not only in the ones that God opens, in all your contacts with whoever you meet. तो यहाँ पर पौलुस कहता है, पौलुस ये नहीं कह रहा कि जिससे परमेश्वर चाहे उन्हीं को सुसमाचार सुनाओ, लेकिन जितने भी तुम्हारे संपर्क में है उन सभी को। So as often as you get in contact with anyone or over the phone, you have to speak gospel. तो जितने लोगों से भी इसका मतलब आप मिलते हैं, आप संपर्क करते हैं या आपको फोन आता है या आमने सामने मिलते हैं, उन सभी को आपको सुसमाचार बताना है। Christ has to reflect through your speech. मसीह जो है आपके शब्दों के द्वारा मसीह झलकना चाहिए। So he is saying, make the most of all your chances to tell others the good news that they don't have to suffer any longer. Jesus is the way, the truth and the life. तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम्हारे जितने भी मौके हैं उन सब का उत्तम फायदा उठाकर तुम लोगों को सुसमाचार सुनाओ। Excellent. Now we come to the second point. अब हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं। I hope you'll enjoy. Hallelujah. By now you all might have thought the sixth point should have come already by now. Thank you Jesus। I hope you all are enjoying. और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी आनंद उठा रहे हैं। We can go deeper and deeper and deeper into all these topics, but I'm just giving the surface for you to get an idea. और हम जो है इन सारे विषय में गहराई तक जा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको इसके ऊपर ऊपर थोड़ा समझा रहा हूँ। So let's now look at the church which was founded again as the result of the Ephesian ministry in Acts 19:10. तो हम फिर एक ऐसी कलीसिया को देखते हैं जो कि इफिसियों की कलीसिया से ही होकर ये कलीसिया आई। Interesting. So verse 7 we see the church name. What is the church name? Philadelphia. तो वचन 7 में हम कलीसिया का नाम देखते हैं फिलाडेल्फिया। Now what is interesting about the Philadelphian church is that it was a small congregation. फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे में एक बात यह है कि ये कलीसिया में बहुत ही छोटे दल में लोग थे। Okay, but what is interesting about this small congregation is I told you about the martyrdom of Polycarp. और मैंने आपको बताया था कि पॉलीकार्प जो व्यक्ति था उसका जो वो कैसे शहीद हुआ। Of Smyrna, that he was burnt and then because he was not burning, they killed him with the sword.
और मैंने बताया था कि पॉलीकार्प को स्मिरना में कैसे उसे शहीद किया गया, उसे जलाया गया था, लेकिन वो जल नहीं रहा था, तो उन्होंने चाकू या तलवार लेकर उसे मार डाला। The very beautiful, interesting thing about that incident is that there were some Philadelphian believers also that were killed during that time. और यहाँ पर दिलचस्प और सुंदर बात यह है कि उस समय जब पॉलीकार्प को शहीद किया जा रहा था, फिलाडेल्फिया के शहर के लोग, विश्वासी लोग भी वहाँ पर मौजूद थे जिनको सताया गया था। And they were killed the same time Polycarp was killed. और जब पॉलीकार्प को मारा गया उसी समय में ये कलीसिया के लोगों को भी वहाँ पर शहीद किया So गया था। it's a very beautiful church. ये बहुत ही सुंदर कलीसिया है। But what about this other guy that you can see on the screen whose name is Ignatius of Antioch? तो इस दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या, जो हम इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इग्नेशियस, जो एंटियोक से था। They say he was Polycarp's disciple, but he was also John's disciple. लोग कहते हैं कि ये जो है पॉलीकार्प का जो है शिष्य था, लेकिन ये भी माना जाता है कि यूहन्ना का भी शिष्य था ये। So they were very strong in the faith. तो ये विश्वास में बहुत ही मजबूत थे। He was on his way to martyrdom because he knew that he was going to be martyred. और वो अपने मार्ग पे था कि वो शहीद किया जाने वाला है, उसे ये पता था। The Romans came and they bound him up and they took him and they were taking him towards his martyrdom. रोमी जो सैनिक है वो आए और वो इसे बांध कर इसे लेके जा रहे थे शहीद करने के लिए, मारने के लिए। He wrote so many epistles against the heresies of the church. और कलीसिया में जो सताव और जो समस्याएं थी उसके खिलाफ उसने बहुत सारे पत्रों को और खत को लिखा। They were told him just because he was not a Roman, therefore he wouldn't be beheaded, but he would be fed to the wild beasts. और उन लोगों ने उससे कहा कि तुम रोमी नहीं हो, इसी वजह से तुम्हारा गला नहीं काटा जाएगा, तुमको जो है जानवरों, जंगली जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाएगा। We had a bungalow in Pune, हमारा बंगलो था पूना में, and our uncle had a different bungalow. और हमारे जो अंकल थे उनके दूसरे बंगलो थे। At that bungalow, construction was going on, so we as children used to always go to that bungalow and see the construction work. तो हम जब उनका, मेरे अंकल का बंगलो का काम चल रहा था, उनका बंगला बन रहा था, तो हम बच्चे होने के नाते वहाँ पर उनके बंगले पर जाते और देखते। There was a dog, वहाँ पर एक कुत्ता था, stray dog. वो रास्ते पर का कुत्ता था। Me and my elder sister, we love dogs. मैं और मेरी जो बड़ी बहन है, हमको कुत्ते बहुत पसंद The है। middle one also does, but elder and me, we love stray dogs. हम दोनों को बहुत पसंद है कुत्ते। So she went in the morning on her kinetic, on the bike. She went in the morning to see, and she came back crying because that dog bit her, literally flesh bit her. और ऐसा हुआ कि मेरी जो बड़ी बहन है वो अपने बाइक को लेकर वो जाती है उस कुत्ते को सुबह देखने के लिए, लेकिन जब वो वापस आती बंगलो है, को देखने के लिए, कुत्ते को नहीं। वो जाती है वहाँ पर सुबह बंगला देखने के लिए, लेकिन वो जब वापस आती है तो बहुत रोते हुए आती है, क्योंकि वो जो कुत्ता था उसने उनको काट लिया था और उनका पूरा चमड़ा जो है मांस निकल आया था बाहर। And I was laughing and laughing and laughing. और मैं बहुत ज़्यादा हंस रहा था, बहुत हंस रहा था, Too much I was laughing. बहुत ज़्यादा मैं हंस रहा था। In the evening, और शाम के समय we went again, me and my sister. मैं और मेरी बहन हम वापस वहाँ गए, She somehow got to the gate and she's knocking the gate so that that uncle comes out and opens. और वो वहाँ पर जाकर हम वो जो है गेट पे खटखटा रही है कि वो जो अंकल है वो बाहर आए और दरवाज़ा खोले, I'm coming coolly behind her. और मैं उनके पीछे पीछे आराम से आ रहा हूँ। I don't care. I know dogs won't bite me. और क्योंकि मुझे पता है कि जो कुत्ते हैं वो मुझे कभी काटेंगे नहीं। This dog started coming towards me. ये जो कुत्ता है वो मेरी तरफ आने लगा। Slowly, you know, dogs which bite come slowly. Okay, they don't bark. और वो जो कुत्ते जो काटने वाले रहते हैं वो हमेशा बहुत धीरे आते हैं, वो भौंकते नहीं हैं। He caught hold of me उसने मुझे आकर पकड़ लिया and he bit me also. और उसने मुझे भी काटा, So horribly. और इतने बुरी तरीके से। He was not leaving only, then my sister had to throw stones and this and that. और वो कुत्ता मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। फिर मेरी बहन को जो है पत्थर वत्थर मार कर उसके भगाना पड़ रहा And you know, at the construction site, only those small little stones are there, which you get on railway track. और आपको पता है कि जब बिल्डिंग बनता है या बंगला बनता है तो वहाँ पर छोटे छोटे वो पत्थर ही होते हैं। So till that fellow came from the bungalow and took a bamboo and started beating the dog didn't leave me. और जब तक वो व्यक्ति जो वहाँ पर काम कर रहा था वो सब छोड़कर एक लकड़ी लेकर बड़ा आया नहीं उसे कुत्ते को मारने के लिए, तब तक वो कुत्ता मुझे काटता रहा। In the night, I was not laughing. Everybody else was laughing. और रात के समय फिर मैं नहीं हंस रहा था, बाकी के जो लोग थे वो बहुत हंस रहे थे। And then I never dared to laugh on anyone who was in misery. और फिर मैंने कभी उसके बाद ये
कभी नहीं किया कि जो भी कोई दुख में परेशानी में उसके ऊपर मैं हंसूं। But I know how horrible that incident is. लेकिन मैं जानता हूँ कि कितना भयानक वो जो है स्थिति था। Ignatius was told that he would be eaten alive by wild beasts, that is lions. और इग्नेशियस ये जो व्यक्ति था उसको कहा गया था कि जंगली जानवर उसे जिंदा चबाकर खा जाएंगे। You know what he said? आपको पता है कि उसने क्या कहा? Lord, make me the wheat. Make me the wheat that when these beasts eat me, I am knead as a dough and I become bread. और उसने ये प्रार्थना की परमेश्वर से और कहा कि परमेश्वर मुझे एक गेहूं के समान बना दे, ताकि मैं जब ये मुझे खाने आए ये जंगली जानवर, मैं आटे के समान गूंद कर एक अच्छी रोटी बन जाऊं, That they may eat and I may come to meet my master in heaven. ताकि वो रोटी के समान मुझे वो खा ले और मैं अपने परमेश्वर से मिलने आ जाऊं Fearless. बिना कोई डर के। He went to that arena. They let all the lions and all the beasts on him. He was ripped to pieces. And all he looked up to heaven and he just gave up his soul and his spirit. और वहाँ पर ऐसा हुआ कि उस जगह पर उसको ले जाकर छोड़ दिया गया जहाँ पर ये सारे जंगली जानवर थे, और उन जानवरों ने उसे चीर फाड़ कर खा लिया, चबा लिया, और उसने अपने प्राण को त्याग दिया और परमेश्वर के पास वो चला गया। Wow, what a man. क्या मनुष्य था ये। You know the beautiful part about this? आपको पता है इसके बारे में सुंदर बात? He stopped on his way to martyrdom. He stopped at Philadelphia. जब वो शहीद होने के लिए ले जाया जा रहा था तो अपने मार्ग में वो फिलाडेल्फिया इस कलीसिया के पास वो रुका, And he gave one of his last lectures over there. और उसने अपना आखिरी वचन जो है वहाँ पर दिया। So how special this church is. तो अब देखिए कि कितना अनमोल ये कलीसिया है। Not Sardis, सार्दिस नहीं, not Laodicea. लेओदिकिया भी नहीं, This small little congregation in Philadelphia. ये छोटा सा दल जो है, बहुत कम लोग उनके पास ही गया। Philadelphia was a small congregation with Sardis up there and Laodicea down here. और फिलाडेल्फिया में जो कलीसिया थी वहाँ पर बहुत कम लोग तादाद में थे, बहुत कम तादाद में लोग थे, जबकि ऊपर की तरफ सार्दिस की कलीसिया थी और नीचे की तरफ लेओदिकिया थी। Everybody is talking about Sardis. सब जो है सार्दिस की कलीसिया के बारे में बात कर रहे On हैं, YouTube they have millions of views. और यूट्यूब पे इनके मिलियन ऐसे व्यूज हैं। So everybody is talking about Laodicea. सब लेओडिसिया के बारे में बात कर रहे हैं। Such a rich, such a lavish, they have their own buildings and bungalows and cars and everything. और इतना आलीशान और वैभवशाली ये कलीसिया जहाँ पर उनके खुद के कार हैं, बंगले हैं और अच्छे अच्छे चीजें हैं उनके पास। And this small little tiny Philadelphia church is sitting over here and condemning themselves. I guess we are not good because see Sardis how they are prospering. Everybody is talking about Sardis and everybody is talking about Philadelphia. और I यहाँ mean पर Laodicea. यहाँ पर ये छोटा सा फिलाडेल्फिया की कलीसिया वो सोच रही है कि सब जो है सार्दिस की कलीसिया के बारे में बात कर रहे हैं और लौदीकिया की कलीसिया के बारे में बात कर रहे हैं। When you start comparing yourself to other ministries and other ministers, you will feel like I'm doing nothing for God. जब आप अपने आप को दूसरे परमेश्वर के जनों से और सेवकाइयों से अपने आप की तुलना करने लगते हैं तो आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे परमेश्वर के They लिए। were felt condemned उन्होंने अपने आप को बहुत दोषी ठहराया because we are not as effective. Nobody is talking about us like the Sardis church, and nobody wants to come to our big buildings and our big palaces like the Laodicean church. और यहाँ पर ये सोच रहे हैं फिलाडेल्फिया की कलीसिया वाले कि जैसे वैभवशाली सार्दिस की कलीसिया और लेओदिकिया की है, उनके पास बड़े बड़े बंगले और बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उनके पास लोग आ रहे हैं, उनके नाम इतने प्रसिद्ध हैं, हमारे बारे में कोई बात नहीं कर रहा। Guys, this is very beautiful and I believe God is going to speak to each one of you. और मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत ही सुंदर पत्री है और आपसे परमेश्वर बातें करेंगे। When we look at other ministers, when we look at other people's lives, we condemn ourselves and say we are not good enough for God. जब हम दूसरों की तरफ दूसरे परमेश्वर के जन और उनकी सेवकाई को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए जो है बिल्कुल योग्य नहीं हैं। In our own sight, we feel insignificant. हम अपने आप में ही खुद अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। We feel we are not doing much for God हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं, because we judge our success on the basis of the money we have and on the basis of followers we have.
और हम जो है अपना जीवन का न्याय इस प्रकार से करते हैं कि कितना ज़्यादा हमारे पास पैसा है और कितने लोग हमारे पीछे चल रहे हैं and how many we have transformed lives. और कितने ज़्यादा लोगों को हमने बदला है। But you know, these guys, when they were feeling insignificant, लेकिन आपको पता है जब ये लोग अपने आप को बहुत ही छोटा समझ रहे थे, there was good news. वहाँ पर एक खुशखबरी आई। You know what the good news is? आपको पता है वहाँ पर खुशखबरी क्या थी? In Jesus' eyes, they were significant. यीशु के नज़र में वो बहुत ही अनमोल थे। I told you to park the two characteristics of God, of Jesus in the corner. मैंने आपको कहा था कि यीशु के जो दो व्याख्या जो बताया पहले, मैंने उसे आप कुछ देर के लिए साइड में रखें। Now you're ready for it? क्या आप तैयार हैं अब इसके लिए? हालेलुया। He's saying, Philadelphia church, वो कहता है कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया, though you are small, भले ही तुम बहुत छोटे हो, though you are insignificant, भले ही तुम बहुत ज़्यादा छोटे हो, you feel you're not as successful as Sardis or Laodicea, तुमको लगता है कि तुम लौदीकिया की कलीसिया और सार्दिस की कलीसिया के जैसे बहुत ही प्रसिद्ध नहीं हो, I, God, मैं परमेश्वर, the true one who doesn't lie, वो सत्य बोलने वाला जो कभी झूठ नहीं बोलता, am telling you मैं तुम्हें कहता हूँ there is not one fault in you. कि तुम में एक भी गलती नहीं है। हालेलुया। थैंक यू You जीसस। are perfect in my eyes. तुम जो हो मेरी आंखों में बिल्कुल सिद्ध हो। There is no one above me. मेरे ऊपर कोई नहीं है, I am holy, मैं हूँ पवित्र, and I am telling you, you have no sin. और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम में कोई पाप नहीं I है। am true, मैं सत्य हूँ and I am telling you, और मैं तुम्हें बता रहा you हूँ are precious in my eyes, and I don't lie. कि तुम मेरी नज़रों में बहुत ही अनमोल हो और मैं झूठ नहीं बोलता। You're talking about that famous church Sardis up there. और तुम वहाँ पे सरदीस की कलीसिया के बारे में बात करो जो ऊपर है, There is not one good point in that. उनमें कोई भी अच्छी बातें नहीं है। You're talking about Laodicea. हालेलुया। तुम वो लौदीकिया के कलीसिया के बारे में बात कर There is रहे हो, not one good point in that. लेकिन उनमें भी कोई अच्छी बात नहीं है। So what's the standard of the world is not my standard. आमेन। हालेलुया। तो संसार जिस माप से मापता है उस माप से मैं नहीं मापता। So you, though you are little and you have little strength, तो तुम जो छोटे हो बहुत ही और तुम्हारे पास कम जो है सामर्थ बचा है, you are heroes in my sight. तुम मेरे नजरों में बहुत ही बड़े हो। Understand, they would have had sin, they would have had weaknesses, they would have had frailties, but Jesus is not talking about anything. He's saying, I, the holy God of Israel, validate you. और यहाँ पर हो सकता है कि उस कलीसिया में गलतियाँ हो, कमज़ोरी हो और कुछ मुश्किलें हो, लेकिन यीशु यहाँ पर कहते हैं कि मैं परमेश्वर तुमको कहता हूँ कि तुम सिद्ध हो, तुम सबसे अच्छे हो। Precious saint, do not find yourself insignificant in the kingdom of God, because he says the little one थैंक यू जीसस। is mighty. और अनमोल संतों, आप अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर या छोटा मत समझे परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी नज़रों में बहुत अनमोल हो। Even the sparrow has found a place in the house of God. और परमेश्वर के भवन में जो है एक गौरैये को भी जो है स्थान मिला रहने He का, has great regards for you. और परमेश्वर आपको बहुत ही उच्च स्थान पे देखता है। He knows you have little strength. वो जानता है कि आपके पास बहुत कम ताकत है, But you know what he knows about you also? लेकिन आपको पता है वो आपके बारे में और क्या जानता है? You have kept his word. कि आपने उसके वचन को रखा है, You have not denied his name. आपने उसके नाम को त्यागा नहीं, And you have been patient and Hallelujah. endured everything. और आपने बहुत ही धीरज रखकर उसके लिए सब कुछ सहा है। Everything that you have gone through, you stayed true to your Lord. आमेन। और जो कुछ भी चीज़ों से आप गुजरे, आप अपने प्रभु के सामने जो है आप सच्चे ठहरे। You never stopped trusting him. आपने कभी उस पर भरोसा करना नहीं You छोड़ा, never left his hand. आपने उसके हाथ को कभी नहीं छोड़ा। He says, listen, वो कहता है सुनो, I, God, मैं परमेश्वर the holy and true one, जो सत्य और पवित्र है, who has the key to the riches of heaven, जिसके पास स्वर्ग के सारे खजानों की कुंजी है, I am telling you, मैं तुमसे कहता हूँ there is no fault in you. You are perfect. कि तुम में कोई गलती नहीं है, तुम सिद्ध हो, You are blameless. तुम निर्दोष हो, You are हालेलुया। without spot. तुम बिना कोई दाग के You हो, are without wrinkle. तुम कोई बिना झुर्री के हो, You are my child. You are the apple of my eyes. तुम मेरे बेटे बेटियां हो और तुम मेरे आंखों की पुतली For हो। that church in Philadelphia, this was something very beautiful.
उस फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए ये तो बहुत ही कुछ अद्भुत था। In the world's eyes, we are nothing. संसार की नजरों में तो हम कुछ भी नहीं है। We may have only 10 people watching the videos that we have. हम हो सकता है कि केवल 10 लोग हैं जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। Maybe nobody knows about me. हो सकता है कोई मेरे बारे में नहीं जानता हो। God, am I effective in your kingdom? और परमेश्वर, क्या मैं आपके जो राज्य में बिल्कुल प्रभावित हूँ? What face will I show you when I come up there? मैं जब ऊपर आऊंगा तो मैं अपना क्या चेहरा दिखाऊंगा? Hey, you are the apple of my eye. परमेश्वर कहते हैं तुम मेरी आंखों की पुतली I हो। have engraved your name in the palm of my hand. मैंने तुम्हारे नाम को जो है अपने हाथों में लिख कर रखा है। Your walls are ever before me. और तुम्हारे जो शहरपना है मेरे सामने हमेशा बनी रहती I है। have precious thoughts about you. और मेरे पास बहुत ही अनमोल विचार है तुम्हारे लिए। How often my thoughts come over you during the day. और पूरे दिन में कितनी बार मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। When you were in your mother's womb, I grafted you. जब तुम अपनी माँ के गर्भ में थे मैंने तुम्हें रचाया। I saw your bones, your formless body as it was being formed. I was there. मैंने तुम्हारी हड्डियों को और तुम्हारे उस शरीर को जो उस वक्त बन रहा था मैंने देखा। Child of mine, मेरे प्रिय बेटे, you are not an accident. तुम दुर्घटनावश यहाँ पर नहीं आए। And above all, और सबसे ऊपर you are not a waste. तुम बिल्कुल यहाँ पर कचरे के समान नहीं हो। You are precious to me. तुम मेरे लिए अनमोल हो। हालेलुया। I invest in my Son Jesus Christ and the Holy Spirit into you. थैंक यू जीसस। मैंने अपने प्रिय पुत्र और पवित्र आत्मा को तुम्हारे अंदर डाला। I made you the temple of God. मैंने तुम्हें परमेश्वर का मंदिर I बनाया। made you the habitation of God. मैंने तुम्हें परमेश्वर का घर बनाया। Don't look down on yourself. अपने आप को आप नीचे मत देखिए। There is no condemnation to them who are in Christ Jesus. उनके ऊपर कोई दोष की आज्ञा नहीं, दंड की आज्ञा नहीं जो मसीह यीशु में है। The Church of Philadelphia, what a relief. और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए कितना बड़ा सुकून था। Let's go to the third point. अब हम तीसरे अपने मुद्दे पर चलते हैं। 6.6 hours. 6 मुद्दा 6 घंटे। Okay, we come to the third point, that is the city. और हम तीसरे मुद्दे पे आते हैं जो है शहर। Okay, this city called Philadelphia was founded in 189 BC. और ये फिलाडेल्फिया का जो शहर है ये शहर का स्थापना हुआ 189 BC में। And it was founded by the king of Philadelphia called as King Eumenes II. और इस फिलाडेल्फिया के शहर को जो जिसकी स्थापना की वो थे राजा इम्यूनियस II। But he named this state or city as Philadelphus. Why? Because Philadelphus means brotherly love, and he had complete adoration and love for his brother called as Attalus II. और किंग राजा इम्यूनियस ने जब इस शहर की स्थापना की तो इस शहर का नाम फिलाडेल्फुस रखा जिसका मतलब होता है भाइयों के बीच में प्रेम। और ये राजा अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता था जिसका नाम था एटलस II। I will not go into their history, मैं इनके इतिहास में तो नहीं जाऊंगा, but you can definitely study about them. It will be interesting. लेकिन आप इनके बारे में और अध्ययन करें, ये बहुत ही अच्छा होगा। Now this city, Philadelphia, was very famous for the center of spreading the Greek culture. और ये जो फिलाडेल्फिया का शहर था ये यूनानी इस रिवाज को, यूनानी जो सभ्यता को आगे बढ़ाने में भी बहुत आगे था। They loved spreading the Greek language as well. और यूनानी भाषा को भी यहीं से उन्होंने फैलाया। They were so much in love with Greek and Greece that they made a small mini Athens. Athens is like the capital of Greece. They made a small mini Athens in Philadelphia itself. और उन्हें यूनानी भाषा और यूनानी लोग इतने ज़्यादा पसंद थे कि उन्होंने इस शहर में जो है यूनानी के जितने भी चीज़ें थी वो यहाँ पर उन्होंने बनाई। The capital of Greece is Athens, so they made Athens, a replica of Athens. तो ग्रीस जो शहर है उसका जो राजधानी है वो एथेन है, तो उन्होंने छोटा एथेन ऐसे करके उन्होंने वहाँ पर बनाया। I hope you remember the god Dionysius. और मुझे आशा है कि आपको याद है कि डायोनीसियस नाम का जो देवता उनका था। Who's Dionysius? When Yes. did we learn? Remember. When did we learn? In the church of Pergamos. परगमोस की कलीसिया के बारे में हमने ये सीखा था। There was a god called as wine drunkenness, the god of drunkenness and wine. और एक ऐसे देवता था उनका जो दाख मधु पीता था और शराब और नशे में रहता था। He was the main Greek god of Philadelphia. और फिलाडेल्फिया का सबसे मुख्य देवता यही था। Why? क्यों? Because Philadelphia was a volcanic region. क्योंकि फिलाडेल्फिया एक ऐसा स्थान था जहाँ पर बहुत ज़्यादा
जो है आग की ज्वाला फटती थी। Because of the volcanic eruptions that used to happen, wine used to grow over there. Wine, क्योंकि वहाँ पर- grape wine, grapes. क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी फटती थी, इसके वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंगूर के गुच्छे बहुत आते थे जिससे वो दाखरस बनाते। Therefore, he is called as the god of Dionysius, the god of wine. इसीलिए वहाँ पर इस देवता को माना जाता था डायनीसियस, जो कि दाख मधु का देवता था। Now, a very scary aspect of Philadelphia. अब फिलाडेल्फिया का एक बहुत ही भयानक एक क्षेत्र, Because of these volcanic eruptions, इस ज्वालामुखी के फटने की वजह से there were major earthquakes in the area. उस क्षेत्र में, उस जगह पे बहुत ही ज्यादा भूकंप होते थे। In the 17 AD earthquake, not only Sardis faced problems, but even Philadelphia, they were completely destroyed. और 17 AD में जब एक भूकंप आया तो उस भूकंप के कारण ना ही केवल फिलाडेल्फिया लेकिन सार्दिस जो है, ये पूरा जो दोनों स्थान है, हिल गया। And now Emperor Tiberius, okay, helped them by forgiving their taxes and gave them finances to rebuild Philadelphia. और इसी कारण फिलाडेल्फिया जो है पूरी तरीके से नष्ट हो गया। इसीलिए एम्परर टाइबेरियस जो था उसने उनको पैसे दिए, उनका जो कर है वो माफ कर दिया और उनको पैसा दिया और build उनको करने के लिए। पैसा दिया ताकि वो उस पूरे देश को, उस शहर को वापस बना सके। So they were very grateful to Emperor Tiberius that they built a temple for him over there as well. तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उन्होंने एहसान माना एम्परर टाइबेरियस का कि उसने उन्हें पैसे दिए इसको बनाने के लिए, इसलिए उन्होंने टाइबेरियस एम्परर टाइबेरियस के नाम पे एक मंदिर भी बना दिया। But it was a very earthquake prone region. Any time the earthquake used to come. लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे किसी भी समय जो है भूकंप आ सकता था। And whatever they built used to fall down. और जो कुछ भी वो बनाते थे वो टूटकर बिखर जाता। They were scared. वो बहुत डर गए। They were trembling every single second when they used to stay there. और जब भी वो वहाँ पर रहते थे वो बहुत डर कर रहते थे। They were watching out for earthquakes. हमेशा वो देखते रहते थे कि कहीं भूकंप तो नहीं आ रहा। That's why their main work life was building buildings. इसीलिए उनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो मुख्य काम था वो था इमारतों को बनाना। And every time they used to build buildings, trying to make it more firm and more strong that it doesn't fall. और हर बार जब भी वो इमारतों को बनाते थे वो उसको इस तरीके से बनाते, हर बार कोशिश करते कि इतना मजबूत बनाए कि ये अब इस बार गिरे नहीं। But most of them used to get so scared to live in those buildings and those areas that they used to live outside in the tents. लेकिन उनमें से कई लोग जो थे वो इतना डरते थे भूकंप कभी भी आ सकता है, इसके वजह से वो इमारतों में नहीं रहते थे, वो छोटे छोटे तंबू को बनाकर उन तंबुओं में रहते। Understand, okay? There's a reason I'm giving you all this information. और एक बात को समझे कि मैं कुछ कारणवश आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। So they used to live in the tents and they used to make buildings, it used to fall again, they used to build and it used to fall. They were frustrated with that, they were scared, they were terrified, they were living in a highly earthquake prone region. और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, वो बार बार इमारतें बनाते, वो गिरता और वो ऐसे क्षेत्र में थे जहाँ पर बहुत भूकंप हमेशा आता था। So now I will come to the fourth point, the commendation or the good points. और मैं अब चौथे पार्ट पर आता हूँ जहाँ पर है बड़ाई करना, उनकी प्रशंसा करना। So verse 8, तो वचन 8 कहता I है, know thy works. मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ, Behold, I have set before thee an open door. मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला है। I know that thou hast a little strength. मैं जानता हूँ कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है Thou hast not denied my word. Thou hast kept the word and not denied my name. और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। And verse 10 says, और वचन 10 कहता है, because thou hast kept the word of my patience, that means thou hast kept the command to endure. तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसका मतलब कि तूने धीरज रखा है। Thank you, Father. So first of all we see you have little power. तो सबसे पहले हम देखते हैं 4 चीजें यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहला चीज है कि तुझ में थोड़ी सी सामर्थ है। Many of us will say, Jesus, confess positive, confess right. और हम में से तो कई लोग यीशु को कहेंगे कि यीशु आप क्या कह रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आप सही बातों को बोले, सही अंगीकार करें। I cancel it in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम में इसका कैंसिल करता हूँ। Jesus is saying you have little strength. यीशु कहते हैं कि तुम्हें थोड़ी सामर्थ है। Confession is not false. जो अंगीकार करना है वो आप झूठ अंगीकार नहीं करते। Paul, if you see Paul's confession in 2 Corinthians 8 and 11, 2 Corinthians chapter 8, 2 Corinthians chapter 11, and throughout entire 2 Corinthians, he's constantly saying, I'm in fastings, I'm in weakness, I'm in distress, I'm in pain, I'm in misery. So many things he says. His confession is not that good,
और पौलुस के जीवन को अगर हम देखें तो दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में उसके 8वें और उसके 11वें अध्याय में और उस पत्री में हर जगह वो काफ़ी जगह पे वो कहता है कि मैं जो है उपवास में, मैं इतनी दिक्कतों में, परेशानी में, मैं मुसीबतों में, और जहाज़ मेरा डूब रहा है और इन सारी मुसीबतों से मैं होकर गुजरता हूँ। So when you're confessing the word of God, it doesn't mean you're denying what's happening. तो जब आप परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ हो रहा है आप उसको नकार देते हैं। So God was not there saying, I confess, light be, light be, light be, in the name of Jesus, light be, light be. तो यहाँ पर परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहे थे कि मैं यीशु के नाम में मैं कन्फेस करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ, लाइट आ जाए, लाइट रेड, लाइट आ So जाए। when he was creating the earth, he knew darkness was there. जब वो धरती को बना रहे थे तो वो जानते थे कि वहाँ पर अंधकार है। He separated the light from the darkness. उसने अंधकार को ज्योति में से अलग किया। He didn't ignore the darkness. उन्होंने अंधकार को जो है नजरअंदाज नहीं किया। Don't ignore your situation and circumstance and just confess like a blind person. और अपने जो स्थिति को जो है आप नजरअंदाज कर अंधों के समान जो है आप सिर्फ अंगीकार ना करते You रहे। know, the cat when drinks milk closes his eyes thinking that nobody's looking at it. जब बिल्ली दूध पीती है तो अपनी आँख को बंद करके पीती है और उसे लगता है उसे कोई नहीं देख रहा। So you don't ignore the darkness or the dark circumstances you're going through and just confess positive and think everything will be okay. तो आप ऐसा ना करें कि आपकी जो बुरी परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं उसको नज़रअंदाज करें और आप सिर्फ अच्छे अंगीकार करते रहें और आप सोचें कि ये चल जाएगा। Even though I have financial issues happening around me, I confess that the Lord is my shepherd, I shall lack no good thing. और भले ही मेरी जो मुझे आर्थिक समस्याएं हैं, मैं ये अंगीकार करता हूँ कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। Even though I sometimes get scared of, but I confess that I have not the spirit of fear, but the spirit of power and love and sound mind. और भले ही मैं कहीं कभार डर जाता हूँ, लेकिन मैं ये अंगीकार करता हूँ कि मेरे अंदर भय का जो है आत्मा नहीं दिया गया, सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा है। So Jesus is telling you, I know you have little power. तो यीशु यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम में थोड़ी सी सामर्थ है। Maybe you're not doing so much as you see the others doing. शायद हो सकता है कि तुम उतना नहीं कर रहे हो जितना दूसरे कर रहे हैं। But don't condemn yourselफ on that. लेकिन अपने आप को इससे जो है दोषी मत ठहराओ। I know it, no? मैं जानता हूँ I इसे। am God. मैं परमेश्वर हूँ। I approve it. मैं इसे अनुमति I am देता हूँ। fine with it. मुझे ये ठीक लगता है। You have little strength, तुम में थोड़ी सी सामर्थ है, but that's okay. लेकिन ये ठीक है। What's more important is जो यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण है वो you ये have kept my word, the second point, and you have not denied my name. दूसरा जो मुद्दा है कि तुमने मेरे वचन को रखा है और तुमने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। We know about denying name and keeping the word. हम जानते हैं वचन का पालन करना और उसके नाम का इनकार नहीं Let's just read one verse. एक वचन पढ़ेंगे हम। John chapter 14 verses 21 to 24. Okay? John chapter 14 verses 21 to 24. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. Keepeth them. Remember, keep my word. Keepeth them. Okay? He it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him and manifest myself unto him. Verse 23, let's go directly to verse 23. Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. He that loveth me not, keepeth not my sayings, and the word which ye hear is not mine, but the Father which sent me. और यहाँ John 14, 21 and 23, 24. यहाँ पर हम यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका पहला 14 अध्याय का 21 वचन देखेंगे। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। वचन 23 और 24 हम देखेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो तुझसे प्रेम नहीं रखता, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, वह मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। So if you love me, keep my word. तो अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। If you are reading the Bible, if you are obeying the Bible, if you are meditating on the Bible, Jesus says that is proof enough that you love me. यीशु यहाँ पर कह रहे हैं
कि अगर तुम मेरे वचनों को पढ़ते हो, मेरे वचनों की आज्ञाओं के अनुसार चलते हो, तो ये दर्शाता है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। That's what he's saying. Keep my word, and that's proof enough that you love me, and me and my Father will come and make our abode in you. How? Through the Holy Spirit. और ये तुम अगर वचन पढ़ते हो और उसकी आज्ञाओं को मानते हो, तो ये काफ़ी है सबूत देने के लिए कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, और पवित्र आत्मा हम भेजेंगे कि तो वो तुम्हारे साथ आकर रहे। Third thing is not denied my name. In Luke 12:9 he says, "But he that denied me before men shall be denied before the angels of God." और लुका का 12 अध्याय उसका 9 वचन कहता है, लुका उसका 12 अध्याय उसका 9 वचन कहता है, What? Okay, sorry. 12:9. लुका उसका 12 अध्याय उसका 9वां वचन, परंतु जो मनुष्य के सामने मुझे इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। Are you understanding that? You have not denied. You have never said, "No, no, I am not a Christian." आपने कभी जो है मेरा नाम का इनकार नहीं किया, आपने कभी नहीं कहा कि मैं मसीह नहीं हूँ, You never said that, "Okay, I'll bow down in front of the idols." और आपने कभी नहीं कहा कि हाँ ठीक है मैं मूर्तियों के सामने झुक जाऊंगा। So Jesus says, "Guys, you are doing pretty well. तो यीशु यहाँ पर कह रहे हैं कि आप लोग जो है यहाँ पर अच्छे काम को कर रहे हैं, Don't condemn yourselves. अपने आप को जो है दोषी मत ठहराएं। This is something the others are not even doing. They're doing many other things, but that's irrelevant." और बाकी के जो कलीसिया के लोग हैं उनमें से तो ये कोई भी बिल्कुल नहीं कर रहा है, और जो कुछ वो कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। What I want is all that you do is keep the word and not deny my name. और मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तुम जो है मेरे वचनों का पालन करो और मेरे नाम का इनकार मत करो। Even though thou hast little strength, even though you have little strength, I'm fine. अगर तुम में थोड़ी सी सामर्थ्य है, इससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ठीक है। And verse 10, the fourth part, because thou hast kept the word of my patience, literally thou hast kept my command which I told you, endure. और यहाँ पर यीशु कहता है 10वें वचन में कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, और इससे परमेश्वर यीशु खुश है कि उन्होंने धीरज रखा। Why? It says that I commanded you to endure, therefore you all are enduring for my name's sake. यहाँ पर यीशु कह रहे हैं कि इसलिए कि मैंने तुम्हें आज्ञा दिया कि तुम धीरज से मेरे वचन को थामे रहो, और तुमने थामा है। So it's not about a one-time keeping, it's throughout the years you have kept and you have endured it patiently. Whatever you suffered patiently for my name's sake. This much is enough for me to love you. और ऐसा नहीं है कि तुमने एक ही बार जो है अपने मेरे इस वचन को थामे रखा, लेकिन कई सालों से तुम जो है अपने वचन को, मेरे वचन को थामे रखे आए हो, और अभी तक धीरज तुमने रखा है। So therefore Jesus is saying, I have nothing bad to say about you. इसीलिए यीशु यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ भी यहाँ पर गलत तुम्हारे लिए कहने के But लिए। I'm going to give you 3 promises located in 3 verse 8, 3 verse 9 and 3 verse 10. लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें 3 वादे ऐसे दूंगा जो वचन 8, 9 और 10 में है। So 3 verse 8, तो वचन 3 अध्याय का the 8वां promise वचन, of increase. बढ़ोतरी का जो है वादा, The 3 verse 9, और 3 का 9 जो है the promise of influence. प्रभावित होने का वादा, And 3 verse 10, और 3 का 10 the promise of immunity. प्रतिरक्षा का वादा। So let's see the first one, the promise of increase. तो सबसे पहले वाला को हम देखेंगे बढ़ोतरी का जो है वादा। Verse 8, वचन 8, I know thy works. Behold, I have set before thee an open door. For thou hast a little strength and hast not denied my name, has kept my word and has not denied my name. और मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। So we already saw this. तो हमने पहले इसे देखा। The next promise is the promise of influence. दूसरा जो वादा है वो है प्रभावित होने का He वादा। says in verse 9, वचन 9 में कहता है, Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा In है। the first session, we already learned about the synagogue of Satan. पहले सत्र में हमने देखा था कि शैतान का आराधनालय क्या होता है। So the Jew is not the Jew which is one outwardly. That's what Paul says in Romans 2. He says the Jew is the one that is Jew inwardly.
तो रोमियो के दूसरे अध्याय में पौलुस प्रचार करता है और कहता है कि यहूदी वो नहीं जो बाहरी रूप से अपने आप को दिखाए, लेकिन यहूदी वो है जो अंदर जो है परमेश्वर के वचन को So the synagogue of Satan, or the Jews, were troubling the Philadelphian church, and they were constantly persecuting them. तो शैतान के आराधनालय के जो लोग थे वो निरंतर जो है उस कलीसिया को परेशान कर रहे थे। Jews, the Philadelphian church. फिलाडेल्फिया की कलीसिया को निरंतर ये यहूदी लोग जो है परेशान कर रहे थे। They were jealous of the Philadelphian church. फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लोग से वो बहुत ही ज्यादा जलन रखते थे। Very sad, later on, another church betrayed the Philadelphia church. और बहुत दुख की बात है कि बाद में ऐसा होता है कि एक कलीसिया जो है फिलाडेल्फिया की इस कलीसिया को जो है धोखा देती है। I will tell you when. मैं आपको बताऊंगा ये कब होता है। You see the 10th point, I mean Revelation 3 verse 10. वचन प्रकाशित वाक्य 3 का 10 देखेंगे। It says immunity. The third promise is immunity. तीसरा जो है तीसरा वादा जो किया गया है वो है प्रतिरक्षा का। So the first promise is increase, the second promise is influence over your enemies. I will give you so much influence over your enemies that your enemies shall come and bow down at your feet and worship at your feet, and they will say of a truth, you belong to Jesus and Jesus is Lord. और यहाँ पर 3 वादों को हमने देखा। पहला वादा था बढ़ोतरी का वादा, दूसरा वादा है प्रभावित होने का वादा यानी यीशु यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारे जो शत्रु हैं वो तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे पैरों में गिरकर वो जान लेंगे कि तुम जो है यीशु मसीह के हो। Everybody who's talking about your Jesus, against your Jesus today and is not receiving your gospel, tomorrow they're going to fall down at your feet and receive the Jesus. Amen, hallelujah. आज जितने भी लोग जो आपके खिलाफ खड़े हैं और जो आपके यीशु की निंदा कर रहे हैं, कल ऐसा दिन आने वाला है, कल वो हो जाएगा कि वो लोग आपके पैरों पर गिरकर कहेंगे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। No matter how much they try to run from Jesus, Jesus says, I am giving you a promise, these guys are going to come. और यीशु कह रहे कि भले ही वो कितना भी आपसे दूर भागना चाहे, कितना भी वो मुझसे दूर भागे, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि वो मेरे पास आएंगे। Oh, let it give you peace that your household is saved. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये आपको जो है बड़ी शांति दे कि आपका घराने का उद्धार जरूर होगा। The more they talk about your Jesus, the more they qualify to come and fall down at your feet and say your Jesus is Lord. और जितना ज़्यादा वो आपके यीशु की निंदा करते हैं, उतना ज़्यादा वो योग्य बनते हैं कि वो आपके पैरों के पास आकर गिर कर कहें कि यीशु मसीह प्रभु है। So the next time they're talking about your Jesus, let that joy bubble from within. Arey, your days come, your days come. You are going to accept my Lord Jesus Christ. Don't be in pain. अगली बार जब भी वो आपके यीशु के बारे में बात करके निंदा करते हैं आपके यीशु की, तो आप अपने अंदर से वो आनंद को बहने दें और ये जान लें कि वो समय और निकट आ चुका है कि वो गिर कर दंडवत करे और कहे यीशु ही प्रभु। Start smiling. और खुश रहना शुरू कर I'll दें। tell you a very lame example, but I'll tell you an example. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। Suppose there's an India-Pakistan match, और उदाहरण के तौर पे भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा है and the match is over. और मैच खत्म हो गया, But a friend of yours doesn't know that the match is over. लेकिन आपका दोस्त जो है वो नहीं जानता कि मैच खत्म हो You गया। know India has won. आपको पता है कि भारत जो है जीत चुका है। This friend comes and he's always boasting. ये दोस्त जो है वो हमेशा आकर घमंड की बातें करता है। So he comes and tells you, you know now Pakistan is only going to win. Pakistan is, I challenge you, Pakistan will win. Your India won't win only. Pakistan will win. Pakistan will win. और ये व्यक्ति जो है तुम्हारा दोस्त वो आकर कहता है कि अरे तुम्हें क्या पता है, मुझे पता है पाकिस्तान जीतने वाला है, पाकिस्तान पक्का पाकिस्तानी जीतेगा। अरे I'll give you 20,000. I'll give you 20,000 challenge. Pakistan will win. और मैं तुम्हें जो है 20,000 रुपया दूंगा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि पाकिस्तान ही जीतेगा। You will sit back and you will laugh at him. और आप आराम से पीछे बैठकर आप उसके ऊपर हंसेंगे। Game खत्म हो गया. Game is over. गेम खत्म हो गया। You know it. India won. आपको पता है कि इंडिया जीत गई। Okay. आप कहेंगे ठीक है, You are right. तुम सही हो। You will be at rest आप आराम से शांति से because you know रहो, India won. क्योंकि आपको पता है ये भारत जीत Like that, गया। these people who are talking about your Jesus Christ, you should be Amen. at rest because you know they are going to come to Christ whether they like it or not. आमेन। तो आपको भी ऐसे बिल्कुल शांति में रहना है जब आपको पता है कि ये लोग जो आज बुराई कर रहे हैं यीशु की, ये यीशु के पास एक दिन आएंगे। Let them boast how much ever they want. जितना भी उन्हें घमंड की बातें करना है उन्हें कर लेने दो। Philadelphia, all your enemies that are troubling you, और फिलाडेल्फिया, जितने भी तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हें सता रहे हैं, all that are laughing at you, जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, they're going to come and worship with you. वो आएंगे और तुम्हारे Wow. साथ आराधना करेंगे। थैंक यू Amen. जीसस, हालेलुया। Verse 10, और वचन 10 immunity. वचन 10 जो कहता है
And over there he says that because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation that shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. और जो तीसरा वादा है प्रतिरक्षा का वादा, जो कहता है तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। Now what is the hour of temptation? और ये जो है परीक्षा का समय क्या है? Many leaders feel that it's the great tribulation कई अगुओं को लगता है कि ये जो है महासंकट का समय है, because it says that it will come upon all the world. क्योंकि ये कहता है कि पूरे संसार में ये आएगा। I don't believe that मैं इस पर विश्वास for नहीं one करता। reason. एक कारण से He says that I will keep you, Philadelphia. Only Philadelphia? If the tribulation is going to come on all the world, there are Christians in other part of the world as well, right? Why is this promise only to Philadelphia? और यहाँ पर सिर्फ एक ही कलीसिया को यीशु जो है महासंकट में क्यों छोड़ेगा? अगर पूरे संसार में ये महासंकट आएगा तो बाकी के भी होने चाहिए वहाँ पर, लेकिन सिर्फ इसी से ये वादा क्यों कर रहा है? He was talking about a time of trying and testing that was going to come, which would make many churches leave the faith and leave Jesus Christ and go back. और यहाँ पर यीशु उस समय की बात कर रहे हैं जब बहुत सताव बढ़ जाएगा मसीहियों के ऊपर, बहुत संकट आएंगे और बहुत सारे कलीसियाओं में से विश्वासी लोग जो है पीछे हट जाएंगे और यीशु के नाम का इनकार करेंगे, लेकिन ये लोग नहीं। When did that happen? और ये कब हुआ? In the 7th century. सातवीं शताब्दी। Islam was spreading all across the world इस्लाम जो धर्म है वो हर जगह बढ़ रहा था because of Muhammad and everything. मोहम्मद और इन सभी के कारण, So Islam was spreading all across the world. और इस्लाम जो है वो पूरे संसार भर में फैल रहा था। That was when this entire region was becoming Turkey. और उस समय जो है ये पूरा जो क्षेत्र है ये टर्की में बदल रहा था It was becoming an Islamic region. और ये पूरा यहाँ पर इस्लाम फैल रहा था। Because Islam was a very violent religion at that time as well. और उस समय भी जो है इस्लामिक ये जो धर्म था ये बहुत ही ज़्यादा खून खराबा और मारपीट करने वाला धर्म Many था। Christians started giving up. कई मसीहों ने जो है अपने विश्वास को त्याग दिया। The last one to give up. जो सबसे आखिरी था जिसने अपने विश्वास को Till त्यागने वाला the था, end that stood faithful. आखिरी तक जो विश्वास योग्य बना रहा। This little strength Philadelphia church. वो यही कलीसिया है जिसके पास थोड़ी सामर्थ्य बची थी। These guys stood faithful to the end. ये सारे लोग जो है उस परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहे। Jesus said, I will keep you in the hour of testing that shall come upon all the Hallelujah. world. यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें संभाले रखूंगा, बचाए रखूंगा उस परीक्षा के उस समय से। But something sad happens. लेकिन कुछ बहुत यहाँ पर बुरा होता A है। fellow church और एक जो और कलीसिया वहाँ पे है who have already given up, जिसने और पहले से ही अपने विश्वास को त्याग they दिया है, betray the Philadelphian church वो फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लोगों को धोखा देते हैं and they inform the Muslims that they are there and they finish them off. और ये धोखा देते हैं और ये लोग जाकर मुस्लिम लोगों को जाकर बता देते हैं कि यहाँ पर कलीसिया है और विश्वासी लोग हैं, और वो आकर उन सभी को ख़त्म कर देते हैं। Very sad. बहुत दुख की बात है, But that's what happened. लेकिन यही होता है। So the hour of testing that came upon all the world, don't think it's the Great Tribulation. It was that period when Islam was increasing over all the world. और ये परीक्षा का वो समय जो यहाँ पर यीशु कह रहे हैं वो महासंकट का समय नहीं है, ये वो समय था जब 7वीं शताब्दी में ये मुस्लिम लोगों ने उन लोगों को पर सताव किया। Revelation chapter 3 verse 11. प्रकाशित वाक्य 3:11, Behold, I come quickly. मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। Why would Jesus tell that? यीशु ये क्यों कहेंगे? They were constantly looking out for volcanic eruptions and earthquakes. और वो निरंतर अपना ध्यान लगाए रह रहे थे कि कभी भी भूकंप आ सकता है, When will the next earthquake come? कब अगला भूकंप आ जाएगा। Jesus was telling them, set your focus not on this earthquakes, set your focus on me, that I am coming quickly. हालेलुया। यीशु उन लोगों से कहना चाहते थे कि ये जो भूकंप हो रहे हैं और जो ज्वालामुखी फट रही है, इन पर अपना ध्यान बिल्कुल मत दो, ये इस बात पर ध्यान दो कि मैं बहुत जल्द जो है आने वाला हूँ। He says, behold means look out, watch out, see, perceive, look intently for me, not for earthquakes. वो कहते हैं कि देखो, बहुत ध्यान से, बड़ी नज़र उठाकर ध्यान से देखो कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। भूकंप पर ध्यान मत दो, मुझ पर ध्यान दो। How are you living your life today? आज आप अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं? Are you looking out for Jesus?
क्या आप यीशु की तरफ देख रहे हैं? Read all that scriptures on the screen which I put. और जो वचन मैंने स्क्रीन पर डाला है उन सबको आप पढ़ें। Are you looking out for Jesus' return? क्या आप यीशु के आगमन का इंतजार कर रहे हैं? Live as if Jesus came yesterday, died today morning, rose up today morning, and is coming tonight. और ऐसा जीवन जिए कि यीशु का कल मृत्यु हुई, कल गाड़ा गया और आज वो जिंदा हो चुके हैं और वो वापस कल आने वाले हैं। आज आने वाला। आज वापस आने वाले हैं। Tonight he is coming back. आज रात वो वापस आने वाले हैं। What would you do? आप क्या करेंगे? What would you do if tonight was your last night? आप क्या करेंगे अगर आज रात आपको आखिरी रात आपको पता है? What would you do if you knew that there were only few hours left for your life? क्या आप करेंगे अगर आपको पता है कुछ ही घंटे बचे हैं आपके जीवन में? Jesus is saying, look out for me. यीशु कह रहे हैं मेरी ओर देखो। People are looking out for the mark of the beast. ये लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कब जो है 666 का मार्क आ जाएगा। People are looking out for Antichrist. लोग इंतजार कर रहे हैं कब मसीह विरोधी आएगा। People are looking out for what will happen after coronavirus. और कोरोना वायरस के बाद क्या होने वाला है, लोग वो उस पर ध्यान दे रहे हैं। People are looking as to what happened to this actor and what happened to that actor. और लोग देख रहे हैं कि इस एक्टर के साथ और उस एक्टर के साथ क्या हुआ What is the next news that will come out? और अगला खबर जो है वो क्या आएगा। What are you waiting for? आप किसका इंतजार कर रहे What हैं? are you looking out for? आप किस पर ध्यान दे रहे हैं? Are you looking out for Jesus? क्या आप यीशु पर ध्यान दे रहे हैं? Your life will show that. तो आपका जीवन वो You will दिखाएगा। not waste time any longer. आप बिल्कुल अपने समय को बर्बाद नहीं You will करेंगे। keep His word and not deny His name. आप उसके वचन का पालन करेंगे और उसके नाम का इनकार नहीं करेंगे। Thank So you, don't Jesus। look out for earthquakes. Look out for Jesus. तो जो है भूकंप पर ध्यान न दें, यीशु पर ध्यान दें। That no man hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. और वचन 12 कहता है जो 11 जय पाए। ओके, वचन 11 में लिखा है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। No man take thy crown. कोई तेरा मुकुट छीन न ले। There's a shaking that's going to happen. और एक जो है बहुत बड़ा भूकंप होने वाला है। And the first thing you have to hold is your crown, because your crown will fall from your head, na? और सबसे पहला चीज जो आपको संभालना है वो आपका मुकुट, क्योंकि सबसे पहले वही गिरेगा। So they were used to the earthquake. तो वहाँ पर भूकंप उनके लिए एक सामान्य बात हो They चुकी were है। used to holding things और वो हमेशा पकड़े रहते and थे hanging on because the shaking happens. और वो हमेशा उस चीज को पकड़े रहते थे क्योंकि पूरा हिल रहा है वहाँ का So जगह। Jesus is saying, hold on to what thou hast, that no man take thy crown. इसीलिए यीशु वहाँ पर कह रहे हैं कि जो चीजें हैं उसे थामे रह ताकि तेरा मुकुट कोई छीन न ले। What type of a crown it is? 1 Corinthians 9:25 says it's an incorruptible crown. और किस प्रकार का ये मुकुट है? पहला कुरिन्थियों 9:25 में कहता है ये नाशवान वो मुकुट है, And Revelation 4 अविनाशी मुकुट है। and Revelation 4:10 says it's a crown of gold. और प्रकाशित वाक्य 4:10 में कहता है कि ये सोने का मुकुट है। James 1:12 says it's a crown of life. याकूब 1:12 में कहता है कि ये जीवन का मुकुट है। 2 Timothy 4:8 says it's a crown of righteousness. दूसरा तिमुती 4:8 में कहता है कि ये धार्मिकता का मुकुट है। In 1 Peter 5:4 it says it's a crown of glory. और पहला पतरस 5:4 में कहता है कि ये महिमा का मुकुट The है। literal translation is, when he says to the church of Smyrna, I will give thee a crown of life, I will give thee the crown, literally life. और जब स्मरणा की कलीसिया से यीशु वादा करते हैं कि मैं तुम्हें जो है जीवन का मुकुट दूंगा, तो उसका असल में मतलब ये है कि वो उन्हें जीवन दान देंगे। And what is the texture of this crown? Gold. और ये जो मुकुट है वो कैसा होगा? सोने के समान। Why? Because he's made us a kings and priests. Na? इसलिए क्योंकि उसने हमें राजा और याजक बनाए हैं। The 24 elders sitting around the throne, what crowns they have? Crowns of gold. और जो 24 प्राचीन उस सिंहासन के इर्द गिर्द बैठे हैं, उनका जो मुकुट है वो सोने का बना। What's the price of gold? 1 tola, 1 gram. Huh? You're going to have a full crown of gold. Amen। और आप सोचें कि यहाँ पर जो है सोने का जो है दाम या कीमत आज कितना है, लेकिन आप सोचें कि स्वर्ग में आपके पास सोने का मुकुट होगा इतना बड़ा। There will be no mutut and all that to sell your gold and keep and all that. वहाँ पर ऐसे मुथुट और ऐसे सब बैंक नहीं होंगे जहाँ पर आपके सोने को बेच दिया It's जाएगा। yours. वो आपका ही रहेगा हमेशा। Amen। Hallelujah। Bless you, Father। Amen. The 6th point. और छठा जो मुद्दा You है, know, shocking. There are only 6 points. और अचंभे की बात की केवल 6 पॉइंट है यहाँ पर, Because normally there should have been 7 points, right? क्योंकि ज़्यादातर तो हमारे 7 पॉइंट होते हैं। There's no concern. इसमें कोई चिंता वाली इस कलीसिया में There's बात no ही bad नहीं है, points. कोई गलत बात है ही नहीं Therefore, इस there are only कलीसिया 6 points. में। इसीलिए इसमें 6 पॉइंट ही है। Amen. God, hallelujah। Such a beautiful church. Imagine. इतना सुंदर ये कलीसिया है कि इसमें कोई चिंता वाली बात You नहीं। think all the history and everything is over? There's still something left. क्या आपको लगता है कि जो इतिहास है इस कलीसिया का खत्म हो गया? अभी भी कुछ बाकी है। And in the end, you'll be in for a shock. और आप
जब निश्चय ही आप अंत में जो है बहुत चकित होने वाले हैं। Let's see 3 verse 12. हम देखेंगे तीसरे अध्याय का 12 वचन। Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out, but I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. जो जय पाए उसमें उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और अपने परमेश्वर का नाम और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। Now by now you must have understood the crux of the city, what's happening. और अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि शहर में क्या हो रहा है। Why is Jesus speaking like this? यीशु ऐसे बात उनसे क्यों कर रहे हैं? Number 1, he that overcomes, सबसे पहले वो जो जय पाए I will make a pillar. मैं उसे खंबा बनाऊंगा। Remember their buildings were constantly falling. आपको याद है उनकी जो इमारतें जो बनाते थे वो निरंतर गिरती रहती थी। I'll make you such a strong pillar that you will never fall again. हालेलुया। और मैं तुम्हें एक ऐसा खंबा बनाऊंगा जो वापस कभी नहीं गिरेगा। थैंक यू। You are trying to make pillars of your own. You will stumble and fall. I'll make you a pillar that you will never fall. और तुम जो है ऐसे खंबे और ऐसी इमारतों को बना रहे हो जो बार बार गिर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा खंबा बनाऊंगा जो वापस कभी नहीं It गिरेगा। gets more beautiful. Next one, you will go no more out. और फिर तुम कभी बाहर ना निकलोगे। Means what? Whenever there was an earthquake, they used to run out of their houses. और जब भी भूकंप आता था वो अपने घर से निकल कर बाहर भागते थे। They were used to running out of their houses. हालेलुया। और वो भूकंप में अपने घरों से बाहर निकल कर भागते थे। He says, I will make sure you don't need to run out anymore. और वो कहता है यहाँ पर कि मैं ये निश्चय कर दूंगा कि तुम्हें अपने घरों से अपने जगह से बाहर भागने की जरूरत नहीं है। You'll be safe and secure. हालेलुया। तुम यहाँ पर बहुत सुरक्षित रहोगे। Imagine in the middle of the night you're sleeping और आप सोचे कि आप रात को सो रहे हैं and the bed shakes. और अचानक से आपका जो बेड है बिस्तर वो हिलने लगता है। You start catching everything and all that, start running out over the house with all your saman and everything, frantic in the middle of the night. और आधी रात को जो है आप उठकर नींद में अपने सामान को ढूंढने लगते हैं और पकड़कर आप भागने की कोशिश करते हैं। And you just realize that your husband just turned the side while sleeping. और आपको एहसास होता है कि आपका पति जो है वो सिर्फ करवट उन्होंने बदली। Any shaking of the bed also will scare you. और बेड बिस्तर पर किसी भी प्रकार का बिस्तर अगर हिलता है तो आप डर ही जाओगे। Then you'll make sure you come back and wake your husband up and give him the shouting of his life. Stop shaking! Otherwise sleep down. और आप जोर से आकर फिर अपने पति को चिल्लाएंगे और कहेंगे हिलना बंद करो नहीं तो नीचे सो जाओ। Oh my God. You understand what beautiful this is to them? आमेन। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये उनके लिए कितनी खुशखबरी की बात थी। Now the third point is interesting. अब जो तीसरा मुद्दा है बहुत ही दिलचस्प है। You'll wonder, what is this name? और आप सोचेंगे ये नाम क्या है। Why so much name? And therefore I didn't say it in the city, I kept it for now. और, Why name? और नाम क्या है ये? I will give you a new name. मैं तुम्हें एक नया नाम Means दूंगा। I will write the name of my God, the name of the city of my God, and then my new name. और मैं अपने परमेश्वर का नाम और परमेश्वर के नए शहर का नाम और मेरा नाम जो है तुम्हें दूंगा। I'll tell you. मैं- 3 things. 3 चीजें। Name of God, परमेश्वर का नाम, name of the city of my God, मेरे परमेश्वर के नगर का नाम my new name. और मेरा नया नाम। Why 3 names? 3 नाम क्यों? You might be wondering, right? आप सोच रहे होंगे। Tell me, you will tell me. You all won't tell. You always say, no, you only tell any which ways. Okay, I'll only tell you. Ready for it? हालेलुया। यस। 3 names. 3 नाम। Philadelphia was the only place which changed its name 3 times. और फिलाडेल्फिया ही एक ऐसा शहर है जिसने अपने नाम को 3 बार बदला। 3 times. 3 बार। Therefore, they were used to name changes. इसीलिए वो जो है इससे बिल्कुल वाकिफ थे कि उनका नाम हमेशा बदलते रहता Like था। Bombay to Mumbai, जैसे कि बॉम्बे से मुंबई हो गया, Victoria Terminus to Chhatrapati Shivaji Terminus, विक्टोरिया टर्मिनस जो है बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो गया, Madras to Chennai, मद्रास जो है चेन्नई में बदल गया, Delhi to Delhi only, and Calcutta to Kolkata. और कैलकाटा कोलकाता से। The first name was when they were originated, they were found, the name is Philadelphus. जो सबसे पहला नाम उस शहर का रखा गया था वो था फिलाडेल्फस। The second name they gave was Nero Caesarea, that is when Tiberius built that place back again. और दूसरी बार उनका नाम रखा गया बदलकर वो था नियो सेसरा, जो कि टाइबेरियस एम्परर ने
उस पूरे शहर को वापस जब बनाया था तब उसने उस शहर का नाम रख And दिया। the third name they gave to the Roman governors, the imperial family, the royal family, which was what their name was Flavia. So they termed that whole city as Flavia. The royal family who used to govern over it. तो रोमी साम्राज्य के लोग जो एक पूरा परिवार जो एक परिवार जो उस पूरे शहर को संभालता या उसकी देखरेख करता था, वो रोमी साम्राज्य के लोग, उस परिवार का नाम था फ्लेविया, इसलिए उस शहर का नाम उन लोगों ने फ्लेविया So रखा। 3 times this city changed its name. Therefore Jesus is telling, I'll give you the name of my God, the name of the city of my God, and mine your name. और 3 बार इस शहर का नाम बदला, इसीलिए यीशु यहाँ पर उनसे वादा कर रहे हैं कि मैं तुम्हें अपने परमेश्वर का नाम, अपने परमेश्वर के नगर का नाम और अपना नया नाम दूंगा। But what is beautiful is, लेकिन इसमें सुंदर बात यह है, on every pillar, हर उस खंबे पर the name of their Greek god was written, Dionysius. और उस शहर में फिलाडेल्फिया के उस शहर में जितने भी खंबे थे, उन हर एक खंबों पर उनके उस यूनानी देवता का नाम लिखा हुआ था, जिसका नाम था डायोनीसियस। That's why Jesus is telling them, when I make you a pillar, on you I will write the name of my God. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यीशु उनसे कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हें अपने परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा तो तुम पर मैं अपने परमेश्वर का नाम लिखूंगा। Massive, guys. थैंक यू जीसस, Massive. ब्लेस यू फादर। They understood this letter so accurately. और उनको ये पत्री बहुत अच्छे से समझ में आई। I'm telling you, read this 5 times more. It will sink in so deep. You watch the sermon again and again. Revelation will not be the same for you ever again. और मैं आपको बताता हूँ कि इस पत्री को आप जो है 5 बार और पढ़ें, पूरे अंदर इसे आप अंदर जाने दें, और ये पत्री आपके लिए फिर दोबारा वैसी नहीं रहेगी। Excellent. हालेलुया। The main shock is coming last. और जो सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात है वो अब आता है, For you it's a shock. ये आपके लिए होगा। The 6th point, the council obviously, 3:13 it says, he that has a ear let him hear what the Spirit saith unto the churches. और छठा जो पॉइंट है हमारा सलाह देना, जो कि प्रकाशित वाक्य 3:13 में कहता है, जिसके पास कान है वो सुन ले कि कलीसियाएं, आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। One last thing. एक आखिरी बात, You want to see what remains of the church Philadelphia? क्या आपको देखना है कि फिलाडेल्फिया का कलीसिया आज कैसा है, The city of Philadelphia. फिलाडेल्फिया का ये शहर। Today there is an Orthodox church even in Philadelphia right now, or Orthodox traditional church in Philadelphia. फिलाडेल्फिया में आज भी ऑर्थोडॉक्स कलीसिया जो है, परमेश्वर के नाम की कलीसिया आज भी वहाँ पर चलती है, They are still surviving. आज भी उनमें लोग हैं। Though it's an Orthodox church, but there is a church. और भले ही ऑर्थोडॉक्स हो, रीति रिवाज में चलने वाला कलीसिया हो, लेकिन फिर भी आज वहाँ पर कलीसिया है। But you want to see Philadelphia today? क्या आपको देखना है आज फिलाडेल्फिया कैसा है? It's in ruins. अब वो थोड़ा बर्बाद हो चुका है, Obviously it's in ruins. वो बर्बाद हो चुका है, But what is remaining you want to see? लेकिन उनमें उस शहर में क्या बचा है कि That आपको देखना है? same earthquake region. वही भूकंप में जहाँ पर बहुत The भूकंप आता था, same volcanic region. वहीं पर जहाँ पर बहुत ज्वालामुखी फटती थी, The same region which no building stood firm. और ऐसे भूकंप जहाँ पर आते थे जहाँ पर कोई भी इमारतें जो है बची नहीं, The same place to which Jesus told the church over there that I will make you a pillar. उसी जगह पर जहाँ पर यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें खंबा बनाऊंगा। Ready for it, guys? क्या आप तैयार हैं उसके लिए? हालेलुया। ये आखिरी आप देखें, वाओ, amazing। Only the pillars of this place are left. इस जगह का जो सब खंबे हैं, सिर्फ वो खंबे जो है आज तक खड़े हैं, Rest all is gone. बाकी का सब जो है वहाँ पर मिट चुका है। वाओ, You church of little strength, वाओ। I will make you pillars. और तू कलीसिया जिसमें थोड़ी सामर्थ्य बची है, मैं तुझे खंबा बनाऊंगा। He is God वो परमेश्वर है and He is telling you, और वो आपसे कह रहा है you are हालेलुया, precious to me. कि तुम मेरे लिए अनमोल हो। I appreciate everything you do. और मैं बहुत उन बातों की प्रशंसा करता हूँ जो तुम मेरे लिए करते हो। I love you. मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, And in the end, और अंत में you will be standing like a strong pillar for me. तुम मेरे लिए एक मजबूत खंबे के समान खड़े And रहोगे, on you I will write the name of my God and the name of the city of my God and my new name.
और तुम्हारे ऊपर मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर का नाम और मेरा नया नाम लिखूंगा। One day we shall visit this place to see these pillars and see how faithful Jesus' promises to the church of Philadelphia. हालेलुया। और एक दिन हम इस शहर में जाकर देखेंगे उन सारे खंभों को और याद करेंगे कि हमारा परमेश्वर कितना विश्वासयोग्य है। Today Philadelphia in Turkey is known as Ala Sehir. और आज टर्की में इस फिलाडेल्फिया शहर को जाना जाता है एला शहर के नाम से। Amen. हालेलुया। So I hope you are blessed by today's sermon. और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से आपने आशीष पाया। I hope the 6 churches will never be the same for you again. और मैं आशा करता हूँ कि ये सारे 6 कलीसियाएं आपके लिए वैसे ही नहीं रहे। Guys, respect their history. और इनके इतिहास का आदर करें आप। Read the letters back again. और सारे पत्रियों को आप वापस पढ़ें। Let it sink into your heart. आपके हृदय में इसे बस जाने दें। And how Jesus is speaking to you. और कैसे यीशु आपसे बात कर रहे हैं। Believe me, the last church that we will see very soon और मुझ पर विश्वास करें कि जो आखिरी कलीसिया जो हम बहुत जल्द देखने वाले हैं is the only church that can make even Jesus sick. और केवल यही एक ऐसी कलीसिया है जो यीशु को भी बीमार बना सकती And you है। don't want to be a part of that. और इसका आपको भागीदार बिल्कुल नहीं बनना है। So let's see that church next time. और इस कलीसिया को हम अगली बार देखेंगे। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Precious Heavenly Father, हमारे अनमोल स्वर्गीय we पिता, thank you for this word. हम आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। We thank you for the church of Philadelphia. फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। You told them that you have a little strength and has kept my word and has not denied my name. आपने उनसे कहा कि तुमने मेरे नाम को रखा और मेरे वचन का पालन किया। But I, the holy and true one of Israel, लेकिन मैं जो पवित्र और सत्य हूँ इज़राइल का, who has the key of David, जिसके पास दाऊद की कुंजी है, who opens and no man shuts and shuts and no man opens. जो खोलता है उसे खोले हुए को बंद नहीं कर सकता, जो बंद करता है उसको कोई खोल नहीं सकता। I have set before you an open door. मैंने तुम्हारे सामने एक द्वार खोला है। I have given you influence of your enemies will come and worship. मैंने तुम्हें प्रभावित बनाया है इतना कि तुम्हारे शत्रु आकर तुम्हारे सामने झुककर परमेश्वर की आराधना And करें। I will protect you and keep you from any testing or trials that will come upon others. और मैं सारे सताव और दुखों से मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। You don't need to fear corona. तुम्हें कोरोना से डरने की I जरूरत will नहीं। keep you. मैं तुम्हें संभालूंगा Because thou hast kept the word of my patience. क्योंकि तुमने मेरे धीरज के वचन को संभाले रखा है। And you know what? और आपको पता है, Don't look around at the circumstances that you're going through. और जो परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं उसके ऊपर अपनी नजर न डालें। Don't look at your body. Don't look at your bank accounts. Don't look at all these situations. अपने शरीर को, अपने बैंक अकाउंट्स और ये सारी परिस्थितियों को आप न देखें। Don't look at those people that are troubling you and that are standing against you. उन लोगों की तरफ न देखें जो आपको परेशान करने में लगे हैं। The Spirit of God is saying to those that have a ear, परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से कहना चाहता है जिसके पास कान है, look out only for me, the author and finisher of your faith. सिर्फ मेरे तरफ अपनी नजरों को रखो जिसने विश्वास को पूरा किया। You will stay in perfect peace. तुम पूरे शांति में बने रहोगे। I am coming quickly. मैं बहुत शीघ्र आने वाला हूँ। Hold your crown. अपने मुकुट को थामे रखो। Hold fast what you have. जो कुछ तुम्हारे पास है उसे थामे रखो। My promise to you is I'll make you a pillar in the temple of my और God. मेरा वादा है कि मैं तुम्हें अपने परमेश्वर के मंदिर में खंभा बनाऊंगा। You shall no more shake, you shall no more compromise, you shall no more go out. और तुम बिल्कुल अब यहाँ पर हिलोगे नहीं, तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगे, यहाँ पर सुरक्षित रहोगे। I will make you personally mine. I will write upon you my God's name. I will write upon you the city of my God, and I will write upon you my new name. और मैं तुम्हें अपना व्यक्तिगत बना लूंगा और मैं तुम पर अपने परमेश्वर का नाम, परमेश्वर के नए नगर का नाम और मेरा नया नाम लिखूंगा। You know my new name? और तुमको पता है मेरा नया नाम? We all shall call Jesus by a new name. हम सब यीशु को उस नए नाम से बुलाएंगे। Is it Lord? क्या ये प्रभु है? Is it Savior? क्या ये उद्धार करता Is it है? Christ? क्या ये मसीह है? No. नहीं। It's a special name reserved for the overcomers. और ये बहुत ही विशेष नाम उन लोगों के लिए रहेगा, वही बुला सकते हैं जो विजय पाएंगे। Your earthly father, all cannot call him father, right? आपके जो धरती के पिता हैं सब उनको पिता नहीं बुला सकते। You have a relationship with your father that gives you the authority to call him that name. और आपका आपके पिता के साथ वो रिश्ता है कि आपको वो अधिकार देता है कि आप उसे उस नाम से बुला सकते हैं। You being an overcomer, Jesus gives you an access to a new name to call him. और जब आप जय पाएंगे, यीशु आपको उस नाम
आपका भागीदार करते हैं कि आप उसे उस नाम से बुला He सकें। says, I will write upon you my new name. वो कहते हैं कि मैं तुम पर अपने नए नाम को लिखूंगा। He that has a ear, let him hear what the Spirit says to the जिसके church. पास कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता In है। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Keeping your eyes closed, everybody, अपने आंखों को आप बंद रखें let us receive or produce the blessing. और उस आशीष को हम अपने Let's- ऊपर लेंगे। Let's produce it. Thank you, Father. Worship you, Father. The Lord has blessed thee and the Lord has kept thee. यहोवा ने तुझे आशीष दिया है और तेरी रक्षा की है। The Lord has made his face to shine upon thee and he has been gracious unto thee. यहोवा ने अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाया है और तुझ पर अनुग्रह किया The है। Lord has lifted up his countenance upon thee and given thee peace. यहोवा ने अपना मुख तेरी ओर किया है और तुझे शांति दी है। Thank you, Father. Now, may the grace of the Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह, the love of God, पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रेम and the communion and fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सहभागिता be with you all, आप सभी के साथ बनी रहे, now and forevermore. अभी और हमेशा के लिए। I bless you all in the name of मैं Jesus. आप सभी को आशीष करता हूँ यीशु के नाम में। Celebrate Christ. मसीह का उत्सव मनाएं। Shalom. शालोम।